আমাদের স্পেশাল ট্রেনিং সেশনটা যিনি যাকে আমরা পেয়েছি তার সম্বন্ধে যদি বলতে চাই, আমি তার সাথে প্রথম পরিচয় আমার মোদি কেয়ার কলকাতা পুরনো যে অফিসটা, এখন তো এপিজে হাউসে চলে গেছে, ক্যামাক স্ট্রিটে যে পুরনো অফিস স্প্যান্টিল বিল্ডিংস এ, সেই বিল্ডিং এ 22 নম্বর ক্যামাক স্ট্রিট। সেখানে আমি যে আজকের এগ্রিকালচার নিয়ে এত প্রোগ্রাম করছি, এত যে ইন্টারেস্ট নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছি, আমি কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ইন্সপায়ার কিন্তু তার দ্বারা হয়েছিলাম। আমার কিছু আমাদের বড় বড় লিডার্স রয়েছেন, তাদের মুখে আমি শুনেছিলাম তার নাম, তাকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য সেই সময় হয়নি। হঠাৎই একদিন খবর পেলাম যে মোদি কেয়ার অফিসে 3 জন এএসএম, তখন তিনি ছিলেন রাউরকেলার এএসএম, 3 জন এএসএম, আমাদের ওখানকার যিনি তন্ময়দা রাউরকেলার এএসএম এবং গুয়াহাটির এএসএম খুশবু ম্যাম, এরা সবাই মিলে একটা প্রোগ্রাম করছেন, ওয়ার্কশপ চলছে, 2টো সেশনে হবে। ফার্স্ট সেশনে যখন আমি অ্যাটেন্ড করলাম এবং ওনার প্রথমে উনি ওয়েল দিয়ে শুরু করে তারপরে উনি পরে এলেন এগ্রিকালচারে, এবং আসার পরে আপনি বিশ্বাস করতে পারো না তোমরা যে আমি একজন শহরের মেয়ে হয়ে আমি নিজে এতটাই ইন্সপায়ার হলাম ওনার কথা শুনে যে আমি এগ্রিকালচার সেই মুহূর্তে সেই সেশনে বসে আমি ডিসাইড করলাম না, এগ্রিকালচার নিয়ে আমাকে পড়াশোনা করতে হবে এবং আমাকে এগ্রিকালচারটা নিয়েই কাজ করতে হবে। এবং শুধু সেই সেশন নয়, পরের সেশন আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি, তো পরে যখন দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল আমি শুধুমাত্র তার পার্টটুকু শোনার জন্য আমি প্রচন্ড ভিড়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমি তার পার্টটা সেকেন্ড টাইম শুনেছিলাম। এবং তিনি আমাকে ফার্স্ট বলেছিলেন, মানে আমাদেরকে ফার্স্ট দেখিয়েছিলেন যে কিভাবে এগ্রিকালচার থেকে মাসে 1 লাখ টাকারও বেশি ইনকাম করা যায়। ইয়েস মাই ফ্রেন্ড, মাসে 1 লাখ টাকারও বেশি ইনকাম করা যায়, কারণ এগ্রিকালচার প্রোডাক্টের বিভি হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট 65%, এবং আমরা সবাই জানি এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট কখনো একটা দুটো বিক্রি হয় না, বিক্রি হয়। আর এটা হচ্ছে যে একজন চাষি ভাইয়ের জমিতে যদি এগ্রিকালচার আমাদের মোদি কেয়ারের প্রোডাক্ট ইউজ হয়, তাহলে দেখা যাবে সেটা দেখে দেখে আশেপাশে সবাই যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকে আসবে। এবং সেটা কিন্তু এখন আমি যখন এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম করছি, তাতে কিন্তু আমি জিনিসটা আমি হাতে কলমে বুঝতে পারছি। তো সেই জন্য আমাদের সেই ফেভারিট, এবং তার পরবর্তীকালে তিনি আমাকে অনেকবারই হেল্প করেছেন, অনেকবারই আমি তাকে ফোনে পেয়েছি, ফোনে জিজ্ঞেস করেছি, সামনাসামনি থাকলেও তার সঙ্গে অনেক এই এগ্রিকালচার নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সে অনেকবার আমাকে অনেকভাবে হেল্প করেছে। এবং আমি পার্সোনালি বলতে পারি যে তার এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম শোনার পরে না, সকলের মনে যত ধরনের প্রশ্ন থাকে, এবং তিনি যখন স্টার্ট করেন প্রোগ্রামটা তখন তিনি বলে দেন যে আমি প্রোগ্রাম শেষ করার পরে আমার মনে হয় না আপনাদের মনে কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকবে। এবং সত্যি তাই, যত রকমের প্রশ্ন থাকে না, সব প্রশ্ন সব শেষ হয়ে যায়, আর কোনো মানে প্রশ্ন করার মতো কোনো প্রশ্নই আর বেঁচে থাকে না, মানে এতটাই উনি ভালো ট্রেনিং দেন। এবং এই জুম মিটিং এর সময়তে আমি অনেকবার ওনার ট্রেনিং মিটিং অ্যাটেন্ড করেছি বিভিন্ন সময়, এবং রিয়েলি আই এম গ্রেটফুল টু হিম। সেই আমাদের বিলাভড, যদিও দূরে থাকুন কিন্তু তবুও আমাদের ভেরি ওন, আমি যেটা লিখেও ছিলাম ভেরি ওন, আমাদের বিলাভড এখন ছত্তিশগড়ে এসএম সঞ্জয় ঘোষ, মিস্টার সঞ্জয় ঘোষ, আমাদের এগ্রিকালচার মাস্টার, তাকে আমি ডেকে নেব, কিন্তু আমার ক্ষমতা নেই, মানে আমার লেভেলে নয়, তিনি অনেক উপরে, তাকে আমি ডেকে নেওয়ার জন্য আমারই যে আপলাইন রয়েছে গৌতম দে, প্ল্যাটিনাম ডিরেক্টর, অনেকগুলো ফরেন ট্রিপ অ্যাচিভার, এবং খুব শীঘ্রই কোভিড যদি না থাকতো তাহলে উনি এতদিনে ওনার ড্রিম কারও নিয়ে নিতেন, খুব শীঘ্রই উনি গাড়িও নিতে চলেছেন। সেই আমাদের আপলাইন গৌতম দেখে বলবো ওনাকে, আমাদের স্পেশাল যে ট্রেনার রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় সঞ্জয় দাকে ইনভাইট করতে। সঞ্জয় দাকে উইথ ডিউ রেসপেক্ট, আমরা খুব একটা জোর হাততালির সাথে ডিউ রেসপেক্ট ওনাকে ওয়েলকাম করার জন্য আমি গৌতম দেখে হ্যান্ড ওভার করছি। থ্যাংক ইউ সুপর্ণা। থ্যাংক ইউ সুপর্ণা। তো সুপর্ণা সঞ্জয় সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিয়েছে। তো আজকে মোদি কেয়ারে যত এগ্রিকালচারের এক্সপার্ট হয়েছে সবই কিন্তু এই সঞ্জয় স্যারের হাত দিয়ে। তো আমি এবার ডেকে নেবো, বেশি কথা না বলে, আমরা আসল যেই জন্য ওয়েট করে বসে আছি সেই সঞ্জয় স্যারকে দা
দাদা, স্যার এবং সবকিছুই আর কি ট্রেনার সঞ্জয়কে আমরা দেখে নেব। ওনার কাছ থেকে আমরা এগ্রিকালচারের শুনবো এবং আমাদের আজকে যারা আছে যে কজন আছে এবং তারা আমি জানি তারা সবাই এর পরবর্তীকালে ট্রেনিং এর শেষে এক্সপার্ট হয়ে বেরোবে এবং প্র্যাকটিক্যাল লাইনে ঢুকতে হবে। তাদেরকে প্রত্যেকে এগ্রিকালচারের প্র্যাকটিক্যাল জায়গায় চলে যেতে হবে এবং সেটা আজকে সঞ্জয় ট্রেনিং পাওয়ার পর সবাই ভরসা পাবে এবং প্র্যাকটিক্যালে যাওয়ার জন্য। তো ওভার টু সঞ্জয় ঘোষ, সঞ্জয় স্যার এবং সঞ্জয় দা, এখন স্টেজটা হচ্ছে এখন তোমার। ওভার টু সঞ্জয়। আফটার লং টাইম সবার প্রথম গৌতম বাবু থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, তার আগে আমাকে একটা কথা বলুন, আমি বেশ কিছু লোকদের দেখছিলাম যারা আপনার কলকাতার বাইরের লোক, হ্যাঁ, তো हिंदीতে बोलबो ना बांग्लाয় বাংলায় बोलबो? বাংলায় বাংলায়। लेकिन मैं कुछ लोगों को देख रहा था जो नॉन बंगाली भी है, सो जिनको बंगाली बिल्कुल समझ नहीं आता है वो प्लीज अपना हैंड रेस करें। जिनको भी মানে একটু একটু মিক্সিং করে বলো, কারণ আমার একটা টিমের কিছু লেগ আছে তারা একটু মানে তাদের মধ্যে কিছু বাংলা শিখতে চাইছে। হ্যাঁ, এই বলে দিয়েছেন, ঋতু ম্যাম বলে দিয়েছেন মিক্স করে বলতে, কারণ ওনার টিমেই নন বেঙ্গলি রয়েছেন। হ্যাঁ, ओके, कहाँ से है? मैम ऋतु मैम अपने आप को आप अनम्यूट करके आंसर करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कलकत्ता से ही हूँ, बट बेसिकली मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश। ऋतु शर्मा, आपकी मीटिंग अटेंड की है मैंने, क्वेश्चन भी किया है आपसे। तो बंगाली समझती हूँ बट पूरी तरह से नहीं समझती हूँ। सो मेरा ख्याल से हिंदी में बोलना ही बेटर होगा। गौतम बाबू आप क्या बोलते हो? पहले बोलो। मिक्स बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बंगाली लोग ज्यादा हैं। मिक्स में तो ठीक ठाक से नहीं होगा, कुछ इधर हो जाएगा कुछ उधर हो जाएगा। हम लोग तो बहुत प्रोफेशनल ट्रेनर हो। जी, जैसा आपको सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर्णा मैम, अच्छा बाकी एक बार मेरे को बोल दीजिए, হিন্দি কারা টোটালি বুঝতে পারেন না তারা হাত তুলুন বা আনমিউট করে বলতে পারেন। হিন্দি যারা একদম বুঝতে পারেন না। ওকে, তার মানে হিন্দি সবাই বুঝতে পারে। সো আমি হিন্দিতে বলছি, বাই চান্স যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার থাকে তো ডেফিনেটলি আমরা যখন প্রোগ্রামটা শেষ করব, ম্যাক্সিমাম আমি আপনাদের 40 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা নেবো, তার বেশি নয়। সো তারপর আপনাদের যদি কোনো কোয়েরি থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, ডেফিনেটলি আপনারা জিজ্ঞাসা করে নেবেন। সো আমি প্রোগ্রামটা হিন্দিতেই করছি, কারণ হিন্দি যেহেতু বাংলা মানে ঋতু ম্যাম আছেন যে মানে বুঝতে ওনার একটু অসুবিধা আছে। বাকি আশা করছি আপনারা হিন্দি বুঝতে পারেন, কারণ সববার ঘরেতে আমি যখন কলকাতায় কোথাও না কোথাও যাই প্রোগ্রামে, সব ওই স্টার প্লাস, জিটিভি এই সমস্ত সিরিয়াল দেখেন আপনারা হিন্দি। তো যখন আপনারা হিন্দি সিরিয়াল দেখেন তার মানে ডেফিনেটলি আপনারা হিন্দি ভালোভাবেই বুঝতে পারেন, তো কোনো অসুবিধা নেই। তারপরেও যদি কারো কিছু কোনো একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, খাতাতে ডায়েরিতে নোট করে রাখেন, মিটিং এর শেষে আমরা ডেফিনেটলি আলোচনা করে নেবো। এটা যদি ফিজিক্যাল মিটিং হতো তো আপনাদের কোনো অসুবিধাই হতো না, কারণ জুম মিটিং এ যেহেতু इंटरेक्शन করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, ওই কারণে অনেক সময় প্রবলেম হয়। सो एनीवे, चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मेरा तरफ से प्यार भरा नमस्कार और सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक गौतम सर एंड सुपर्णा मैम, जे हमें एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि हम कोलकाता टीम के लिए भी कुछ कर सके। और मैं काम करता हूँ कोलकाता के लिए नहीं, रायपुर के लिए नहीं, मैं काम करता हूँ टीम मोदी केयर के लिए। सो मेरे लिए कोलकाता या दिल्ली या बॉम्बे कोई बात नहीं है, मेरे लिए एक टीम, एक ड्रीम, एक सपना, राइट। सो मैं मोदी केयर के लिए काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा हम लोग मिले जुले एक साथ काम करके, एक साथ ट्रेनिंग करके, एक साथ कुछ सीख के, अगर किसी को कुछ भला हो सकता है, इससे बड़ा आशीर्वाद और हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब यही सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए है। सो थैंक यू वन सेकेंड गौतम सर, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे को देने के लिए। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर। सो सबसे पहले चलिए एग्रीकल्चर पीपीटी में चलते हैं हम। ओके,
So, good Modika morning to all of you once again. मैं संजय घोष टीम मोदी केयर की तरफ से आज सभी लोगों को इस एग्रीकल्चर प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। सो मोदी केयर का इस एग्रीकल्चर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें हम क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर टोटल हम लोग आज बात करेंगे। और आशा करता हूँ गौतम सर ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुके हैं कि आप लोगों का मन में अगर कुछ डाउट है, सो ये प्रोग्राम में आप लोगों को वो डाउट कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आगे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगा। अगर एग्रीकल्चर के साथ आप लोग थोड़ा बहुत भी काम किए हो या तो एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा सा अगर आप लोगों को नॉलेज है, तो आप लोग को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर कोई भी सवाल जवाब होता है तो डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ हूँ। टोटल जब तक आप लोग का कंफ्यूजन, प्रॉब्लम और सवाल जवाब क्लियर नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है मोदी केयर में टोटल एग्रीकल्चर का कितना प्रोडक्ट है। मोदी केयर में टोटल एग्रीकल्चर का 4 प्रोडक्ट है। नंबर 1 हमारे जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो है एक्टिव 80, और एक्टिव 80 को मॉडिफाई करके, अपग्रेड करके एडवांस जो प्रोडक्ट है वो है आपका एक्टिव 80 गोल्ड। देन दूसरा जो प्रोडक्ट है, ये एक कैटेगरी हो गया एक्टिव 80 प्रोडक्ट। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एक्टिव जाइन, और एक्टिव जाइन का मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस प्रोडक्ट जो हमने लेके आया वो हो गया आपका एक्टिव मैक्स। ये टोटल 4 प्रोडक्ट है। लेकिन फील्ड में अगर हम बात करें, अगर हम काम करें तो कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, सबसे पहला प्रेफरेंस आपका एक्टिव 80 गोल्ड के साथ काम कीजिएगा और एक्टिव मैक्स के साथ काम कीजिएगा। 4 प्रोडक्ट एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी 2 प्रोडक्ट एक साथ इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि एक्टिव 80 एंड एक्टिव 80 गोल्ड, ये दोनों प्रोडक्ट जो है सेम प्रोडक्ट है, इसका यूजेज सेम है, एप्लीकेशन सेम है, डोजेज सेम है, हर चीज सेम है। वैसे एक्टिव जाइम एंड एक्टिव मैक्स भी सेम प्रोडक्ट है। सब ये आपके दिमाग में अभी ये सवाल आएगा, तो अगर सब कुछ सेम है तो कंपनी क्यों बनाया? कुछ तो लॉजिक होगा, कारण होगा जी। सो सबसे पहले हम एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। एक्टिव 80 और एक्टिव गोल्ड दोनों सेम प्रोडक्ट, तो अलग क्यों है? एक्टिव 80 जो प्रोडक्ट है ये सिंथेटिक बेस प्रोडक्ट है। सो नोट कर लीजिए, एक्टिव 80 जो प्रोडक्ट है ये सिंथेटिक बेस प्रोडक्ट है, और एक्टिव 80 गोल्ड जो है ये वेजिटेबल बेस सर्फेक्टेंट, यानी कि एक्टिव 80 सिंथेटिक बैकग्राउंड है और एक्टिव गोल्ड जो है ये आपका आप जैविक भी बोल सकते हो। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, एक्टिव 80 जितना फास्ट काम करता है उससे भी ज्यादा फास्ट काम करता है एक्टिव 80 गोल्ड। तो ये 2 डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। सेम एक्टिव जाइम कैसा है ना? एक्टिव जाइम हो गया आपका कंप्लीट विटामिन, पौधे के लिए जर्मिनेशन से लेके प्रोडक्शन तक, ये टोटल 3 से 6 महीने का जो साइकिल होता है, इस साइकिल में एक पौधे को और एक मिट्टी को जो जो चाहिए हर चीज एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स में है। तो डिफरेंस क्या है? एक्टिव जाइम जो प्रोडक्ट है ये पौधे के ऊपर स्प्रे किया जाता है, फॉलियोर स्प्रे किया जाता है, और एक्टिव मैक्स जो है ये आपका पौधे के ऊपर में भी काम करता है और मिट्टी में भी काम करता है, दोनों जगह में काम करता है। और एक्टिव जाइम जो है ये वोल्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, और एक्टिव मैक्स जो है ये लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया कि एक्टिव जाइम का जो फॉर्मूला है, इस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, इसका जो रॉ मटेरियल्स, ये मोदी केयर का खुद का है। लेकिन मोदी केयर कोई पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर कंपनी नहीं है, तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग धानु का बोल के एक एग्रीकल्चर कंपनी है जो पेस्टिसाइड बनाते हैं, उनका जो फैक्ट्री है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे हम इसको क्या करते हैं, बॉटलिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं उनके वेयरहाउस में। लेकिन एक्टिव मैक्स जो है ये मोदी केयर का खुद का जो कंपनी है, इंडोफिल केमिकल लिमिटेड, उसी इंडोफिल केमिकल कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है। तो यानी कि ये प्रोडक्ट मोदी केयर का खुद का है, ये थर्ड पार्टी वेंडर से हम मैन्युफैक्चरिंग कराता है, लेकिन रॉ मटेरियल्स एंड इंग्रेडिएंट्स और इसका जो टेक्नोलॉजी है ये मोदी केयर का है। सो एक्टिव 80 और एक्टिव जाइम, एक्टिव गोल्ड और एक्टिव मैक्स में क्या डिफरेंस है, आशा करता हूं आप सभी लोगों को पता हो गया। सो हम कोई भी प्रोडक्ट एक्टिव 80 और एक्टिव गोल्ड में कोई एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, और एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स में कोई एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, एक्टिव 80 क्या प्रोडक्ट है और एक्टिव मैक्स एक्टिव जाइम क्या प्रोडक्ट है? एक्टिव 80 जो प्रोडक्ट है
किसान भाई जब खेती करते हैं जाने अनजाने में बहुत सारा चीज वेस्टेज हो जाता है, खराब होता है, नुकसान होता है। सो एक्टिविटी से टोटल वो अगर खेती बाड़ी को करते हैं, मिट्टी को तैयार से लेके फसल को काटने तक वो जो भी काम करते हैं उसके साथ मिला करके करने से कम ज्यादा एज पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 18% से लेके 68% तक पौधे का उत्पाद को बढ़ाने में मदद करता है, पौधे को बीमारी और कीड़े से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है एक्टिविटी, और मिट्टी को नरम बनाने में मदद करता है और मिट्टी का पानी को पकड़ने का क्षमता को बढ़ा देता है। तो ये यानी कि आप एक वर्ड में किसान को बोल सकते हो, किसान भाई को बोल सकते हो कि एक्टिविटी हम क्यों इस्तेमाल करें। एक्टिविटी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो लगभग कम ज्यादा एवरेज 30% का समय खर्चा लेबर को कम कर सकते हो, उत्पाद को बढ़ा सकते हो और मिट्टी को नरम हल्का स्पंजी बना सकते हो, और इसके लिए आपका पॉकेट से एक सिंगल पैसा भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। सो एक्टिविटी क्या बताएंगे हम किसान को कि आपका 30% कम ज्यादा, एग्जैक्ट 30% नहीं बोलेंगे, कम ज्यादा 30% का आपका समय खर्चा लेबर को कम करने में मदद करता है, मिट्टी को नरम बनाने में मदद करता है और मिट्टी का पानी को पकड़ने का क्षमता को बढ़ा देता है। तो इसलिए आप एक्टिविटी इस्तेमाल करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा फसल ले सकते हो कम खर्चे में। एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइन में क्या मतलब क्या है, क्या बोलेंगे। जैसे किसान भाई को कभी कभार कुछ चैलेंजेस आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए वो एक बार विटामिन इस्तेमाल करता है, एक बार हार्मोन करता है, एक बार एंजाइम करता है, एक बार मिनरल्स करता है, तो तरह तरह का विटामिन को इस्तेमाल करता है। तो उसमें भी समय, लेबर, खर्चा, तीनों चीज का भी बढ़ोतरी हो जाता है। लेकिन एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स हमने ऐसा टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया कि पौधे को, मिट्टी को तैयार से लेके जर्मिनेशन से लेके प्लांटेशन से लेके फूल आना, और फूल से लेके फल आना, फल के बाद जब कटाई होता है, प्रोडक्शन लिया जाता है, उत्पाद को उठाया जाता है खेत से, ये टोटल साइकिल में एक पौधे को जितना भी हार्मोन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे चीज चाहिए इस बॉटल के अंदर दिया गया, यानी कि वन बॉटल हजारों चैलेंजेस का वन सोल्यूशन। सो ये है एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स। तो आशा करता हूं ये 2 मिनट का प्रेजेंटेशन में आपको ये पूरा प्रोडक्ट का जानकारी मिल गया है। फिर भी अभी हम थोड़ा सा धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे। सो ये प्रोडक्ट किसके साथ इस्तेमाल करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेफिनेटली हमारे देश का जितना फार्मर्स है, हमारे किसान भाई, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले किसान भाई का क्या भूमिका है आज के दिन में, उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। यानी कि आज से कुछ साल पहले एक किसान भाई के ऊपर कितने लोगों के लिए एग्रीकल्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी था, यानी कि 1950 साल में एक किसान के ऊपर डिपेंडेंट था 16 लोग। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ये 16 लोगों का क्या बोलूं मैं, सब्जी हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, जो चीज हमें जीने के लिए, जो खाना हम लोग खाते हैं, सब्जी बोलिए, राइस बोलिए, चावल बोलिए, दाल बोलिए, गेहूं बोलिए, तो ये 16 लोगों के लिए खाना बनाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते गया और किसान को चैलेंजेस बढ़ते गया, धीरे धीरे देखिए एक किसान के ऊपर कितना डिपेंडेंट हो गया। 1960 26, 1970 47, 1980 76, 1990 100, 2010 155 और आज चल रहा है 2020 खत्म हो गया 200। और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोगों का रिसर्च के हिसाब से देखा गया, ये जो हम लोग 1 साल का लॉकडाउन को झेले, मैक्सिमम लोग घर पे थे, और जितना किसान भाई को चैलेंजेस आया और हमारे पॉपुलेशन का जितना बढ़ोतरी हुआ 2030 साल तक, यही 200 सीधा सीधा भाग जाएगा 2000 में। यानी कि एक किसान को चैलेंजेस हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तकलीफ हुआ, तो 2000 लोगों को खाना मिलना बंद हो सकता है। भले ही हम पैसा बहुत सारा कमा सकते हैं, लेकिन पैसा से हम खा नहीं सकते हैं। अगर हमें जीना है तो हमें अनाज चाहिए, सब्जी चाहिए, और ये सब्जी कौन देता है, हमारे देश की किसान भाई। दूसरा चीज, और एक चीज है टेक्निकल चीज, जो किसान भाई जितना ग्रोथ करेंगे, हमारे देश की जीडीपी भी जो है उतना ही ग्रोथ होगा, और जीडीपी जितना स्ट्रांग होगा उतना हमारा देश वर्ल्ड के सामने नंबर 1 हो सकता है। सो अगर हमारे देश को नंबर 1 बनाना है तो हम सभी लोगों का काम है कि हमारे देश की जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, हर एक किसान भाई को भी हमें मदद करना चाहिए।
तो चलिए देख लेते हैं और एक बार कि किसान भाई को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना। सबसे पहले उसको एग्रीकल्चर का जो लैंड जो है, जो जमीन जो है, ये जमीन का टेंशन जो सबसे ज्यादा हो रहा है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रहने के लिए घर चाहिए, और जो हमारा उत्पाद जो हम लोग करते हैं फैक्ट्रीज, तो सब ये एग्रीकल्चर लैंड को बंद करके किसान को जैसे जैसे चैलेंजेस आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, होटल बना रहा है, रिसोर्ट बना रहा है, फार्म हाउस बना रहा है, घर बना रहा है, राइट। जंगल काट के हम धीरे धीरे साफ कर दे रहा है, तो जितना जंगल का कमी हो जाएगा उतना ही हम लोग को चैलेंजेस बढ़ते रहेगा, किसान भाई को चैलेंजेस बढ़ते रहेगा। सो अगर हम खेती की बात करें तो हमारे देश का जो वेदर जो है और सॉइल कंडीशन जो है और पानी का जो सुविधा है, ये तीनों चीजों को देखते हुए पूरा साल भर में दो मेन खेती होता है। नंबर 1 खरीफ, जिसको गर्मी का खेती बोला जाता है, और दूसरा हो गया रबी, जिसको बोला जाता है विंटर का खेती। लेकिन जहाँ पे मिट्टी वेदर ठीक है, पानी का सुविधा है, वहां पे 3 फसल भी किया जाता है। सो इतना सारा खेती हम लोगों के पास होता है। अब हम बात करेंगे कि मोदी केयर के पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसका बेसिक काम क्या है। इसका बेसिक काम क्या है ना, मिट्टी को और भी ज्यादा उर्वरक बनाना और बीज और पौधे को भी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। आप सभी लोग मोदी केयर का कंसल्टेंट हो और आप सभी लोगों को पता है कि हमें जीने के लिए जो दाल रोटी सब्जी चावल लेते हैं खाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग मोदी केयर की वेल्थ सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि हमारा अगर बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए तो हम प्रॉपर हेल्दी बन सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, बहुत सारा बीमारी से हम अपना बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा बीमारी से हमारा बॉडी का ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अपना लाइफ ऑफ स्पैन जो है इसको हेल्दी बना सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। वैसे ही पौधे के लिए भी सेम चीज चाहिए होता है। तो इस प्रोडक्ट पौधे का हेल्थ एंड उत्पाद और उत्पाद का क्वालिटी हर चीज को बढ़ोतरी करने में मदद करते हैं। सो क्या मोदी केयर एक प्रोडक्ट अपने मतलब टेक्नोलॉजी से इसको तैयार किया और आप सभी लोगों के माध्यम से किसान भाई के पास गए? नो। सबसे पहले हमने जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किए, तो सबसे पहले हमारे देश की जितना भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, हर जगह पे इस प्रोडक्ट को सबसे पहले टेस्टेड किया जाता है। वहां पे इसका रिजल्ट मिलने के बाद, ये प्रोडक्ट सर्टिफाई होने के बाद, तब हम लोग 2000 साल से लेके ये 2021 साल यानी कि पिछला 21 साल से ऑल ओवर इंडिया में इस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। तो चलिए आज के ये जो टोटल 4 प्रोडक्ट है, इस 4 प्रोडक्ट में सबसे पहला जो प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है एक्टिव मैक्स। सो पहले मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम जो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट सेम है। तो एक्टिव मैक्स के ऊपर जो भी हम बात करेंगे सेम एक्टिव जाइम के लिए भी है। डिफरेंस क्या था? एक्टिव मैक्स को हम पौधे के ऊपर फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए। और दूसरा, ये मोदी केयर कंपनी का खुद का कंपनी का प्रोडक्ट है। एंड एक्टिव जाइम क्या है ना, एक्टिव जाइम खाली हम पौधे के ऊपर में ही स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में उतना हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कर तो सकते हैं लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं देगा एक्टिव मैक्स जैसा। और एक्टिव जाइम जो है वो हम थर्ड पार्टी वेंडर से उसको असेंबली करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बॉटलिंग करते हैं, राइट। तो ये मेजर डिफरेंस है, बाकी सेम है। सो चलिए एक्टिव मैक्स के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इसका नाम के पीछे जो कारण है वो कारण क्या है? मैक्सिमाइज प्लांट ग्रोथ, यानी कि एक्टिव मैक्स का काम है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे में ग्रोथ देना, फायदा देना। सो अगेन और एक बार हम लोग किसान भाई के पास चलेंगे और उससे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है एक्टिव मैक्स है क्या? जैसे मैं आप सभी लोगों को बताया हूं कि एक्टिव मैक्स ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक फॉर्मूला, जो हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। सो एक्टिव मैक्स किसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों एक्टिव मैक्स को इस्तेमाल करेंगे, और वही घूम फिर के किसान का आज के दिन में जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे पहले किसान भाई का जर्मिनेशन का इश्यूज, यानी कि जितना बीज का छिड़काव करते हैं उस हिसाब से उतना उनको प्रोडक्ट मतलब जर्मिनेशन नहीं मिलता है, अंकुर ठीक से नहीं होता है। एबायोटिक स्ट्रेस जो हम आगे जाके बात करेंगे, उसके साथ साथ किसान भाई जितना कॉस्टली बोलिए, जितना ज्यादा बोलिए, खाद का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और लेबर का काम करते हैं,
उस हिसाब से उनको प्रॉपर क्वालिटी वाला उत्पाद नहीं मिलता है, और ये एक्स्ट्रा मेडिसिन, एक्स्ट्रा खाद जाके कहाँ डिपॉजिट होता है? ना जमीन में डिपॉजिट होता है। सो डेफिनेटली जमीन में अगर उतना एक्स्ट्रा खाद डिपॉजिट होगा, केमिकल हर दिन बढ़ते जाएगा जमीन का, सो धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन भी जो है, सॉरी मिट्टी भी जो है वो भी खराब होते जाएगा। मिट्टी हर दिन खराब होते जा रहा है, हार्ड होते जा रहा है। सो ये सब चैलेंजेस किसान भाई के पास है। सो चलिए और मोटा मोटा तरफ से देख लेते हैं। ये जो चैलेंजेस है, ये मूल जो सबसे मतलब मोटा मोटा जो चैलेंजेस है वो ये 4 है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट डिमांड, यानी कि जब जर्मिनेशन से लेके प्रोडक्शन होता है, ये ग्रोथ स्टेज में 200 से 500% ज्यादा पौधे को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। लेकिन आज के दिन में हम खेती बाड़ी जितना भी करते हैं वो क्या है, अपना खुद का दिमाग लगा के हम लोग करते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर जो साइंस जो बताते हैं कि आप अगर बेटर क्वालिटी यील्ड, यानी कि अच्छा वाला उत्पाद, क्वालिटी वाला उत्पाद अगर लेना चाहते हो तो आपको एग्रीकल्चर साइंस को मानते हुए करना है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स है वो ज्यादा दूर तक हम फैल नहीं सकते, राइट? तो इसलिए चैलेंजेस है। मोबाइल न्यूट्रिएंट मोबाइलिटी, यानी कि जब हम खाद को इस्तेमाल करते हैं, लगभग जाने अनजाने में 50 से 60% के आसपास जो खाद है, जो मेडिसिन है, वो वेस्टेज हो जाता है। और वेस्टेज होके कहाँ गिरता है? मिट्टी में जाके गिरता है। तो मिट्टी का जो हेल्थ, मिट्टी का जो क्वालिटी, वो हर दिन धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। और मिट्टी का जो बायो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है वो भी इफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एंड एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? वेदर का कंट्रोल करना किसी का भी बस में नहीं है। खेती करने के लिए जितना हमें पानी चाहिए उससे अधिक हो गया बारिश के टाइम पे तो खेती बर्बाद हो जाएगा। उल्टा खेती करने के लिए जितना हमें टेम्परेचर चाहिए उससे भी ज्यादा होगा तो भी वो पौधे सूख जाएगा, मर जाएगा। सो ये सारे के सारे जो चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस का, हजारों चैलेंजेस का वन स्टेप सॉल्यूशन वो है एक्टिव मैक्स विद आईनेट टेक्नोलॉजी। आईनेट का मतलब क्या हो गया? इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनाबलर टेक्नोलॉजी। इंडोलाइट न्यूट्रिएंट एनाबलर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? आप सभी लोगों को पता है मोदी केयर जो है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। सो मोदी केयर अकेले सिंगल कंपनी नहीं है, उनके साथ और भी बहुत सारा कंपनी है। तो मोदी केयर का और एक ग्रुप कंपनी है इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि पौधे के लिए मेडिसिन का तैयार करता है। और इंडोफिल का एक पार्ट हो गया इंडोलाइफ, जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट बनाते हैं उनकी जो साइंटिस्ट लोग, कई सालों की मेहनत रिसर्च करने के बाद। सो इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनाबलर टेक्नोलॉजी, मतलब एनाबलर का मतलब हो गया कि पौधे को सक्षम बनाते हैं खुद का काम खुद ही करें। यानी कि पौधे को बहुत एडवांस बना देते हैं, एनर्जेटिक बनाते थे, ताकि पौधे हमेशा खिला खिला रहे और अपना जितना न्यूट्रिशन का जरूरत होता है वो खुद ही धीरे धीरे कलेक्ट करे। सो ये आईनेट जो टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाता है? नंबर 1, इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनाबलर टेक्नोलॉजी में 4 चीजों के सबसे मेन ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 हो गया आपका रॉ मटेरियल्स, नंबर 2 रिसर्च बैक्टीरियाज, नंबर 3 माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस, एंड नंबर 4 हो गया फॉर्मुलेशन एक्सपर्टाइज। इसका मतलब क्या हो गया, जो कि हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। सो ये आईनेट टेक्नोलॉजी का मेन फंडा, ये 4 चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया? रॉ मटेरियल। सो आप जान के हैरान हो जाओगे कि मोदी के जैसे वेल प्रोडक्ट हम लोगों के लिए पूरे दुनिया का कोने कोने से चुन चुन के लेके आते हैं। दी बेस्ट फॉर्मूला, दी बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हम लोग को प्रोवाइड करता है इंडियन प्राइस में, इंडियन एफोर्डेबल प्राइस में। वैसे ही मोदी केयर हमारे किसान भाई के लिए भी सेम सोचता है। सो इसमें जो हम लोग रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया, उस रॉ मटेरियल का नाम है एस्कोफाइलियम नोडोसम। एस्कोफाइलियम नोडोसम ये बहुत ही कॉस्टली इंग्रेडिएंट्स है, और एस्कोफाइलियम नोडोसम का बहुत सारा ब्रांचेस भी है। लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं ये वर्ल्ड की दी बेस्ट क्वालिटी वाला सी वीड्स को हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है एस्कोफाइलियम नोडोसम। और ये पाया कहाँ जाता है? वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड, यूरोपियन कंट्री में इसको भी खेती किया जाता है अनपॉल्यूटेड एरिया में।
जो आपका समुंदर का किनारे है वहां पे आयरलैंड का जो सी बेल्ट एरिया जो है वहां पे इसको खेतीबाड़ी किया जाता है, जो कि अनपोल्यूटेड एरिया में। और इस प्रोडक्ट को सर्टिफाई भी किया और एनलिस्ट भी किया OMRI। OMRI का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑर्गेनिक मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका अमेरिका एंड कनाडा का एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जिसका काम है दुनिया का दी बेस्ट प्रोडक्ट को लिस्ट बनाना, सर्टिफाई करना कि ये प्रोडक्ट दी बेस्ट प्रोडक्ट है, इससे ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता। सो इतना पावरफुल रॉ मटेरियल आपकी कंपनी मोदी केयर यूज किया। सो ये पावरफुल होने का कारण क्या है? क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर 6 मेजर पावर हाउस पाया जाता है, जिसका नाम है बेटाइन, ऑक्सिन, जिब्बरेलिन, एंजाइम, साइकोटिनिन एंड हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये 6 मेजर पावर हाउस क्या करता है? पौधे को सक्षम बनाते हैं, पौधे को ग्रोथ बनाने में मदद करता है, पौधे का जो जड़ है मिट्टी को ज्यादा दूर तक फैलाने में मदद करते हैं, पौधे का डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद करता है, पौधे का इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करते हैं। यानी कि पौधे जो हमेशा धूप के नीचे खड़ा रहता है जमीन में, खुले आसमान के नीचे, तो उसमें क्या होता है? 24 घंटे सूरज का जो हीट होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो उसके ऊपर पड़ता है, तो इसमें पौधे से भी डिहाइड्रेशन होता है, पानी का कम हो जाना। लेकिन ये 6 मेजर पावर हाउस जो है पौधे को हर तरीके का चैलेंजेस से रोकने में मदद करते हैं, उसके चैलेंजेस को कम करने में मदद करते हैं। और ये भी जान के मतलब हैरान हो जाओगे, ये 6 पावर हाउस के जरिए इस बॉटल के अंदर जो मिलता है आपका मोदी केयर की वेल प्रोडक्ट जितना भी है, सबको एक गमले में या बाल्टी में डाल के खोल लोगे, और जो चीज तैयार होगा, जो फॉर्मूला तैयार होगा, मोदी केयर एक्टिव मैक्स जो है, ये आपके खेती के लिए, अपने किसान भाई के लिए उतना ही पावरफुल चीज है। जैसे ये ऑर्गेनिक इन नेचर, यानी कि ये बनने के पहले और बनने के बाद दोनों साइड से ये 100% ऑर्गेनिक है, जैविक है। इस बॉटल के अंदर ओवर 60 मिनरल्स एंड एलिमेंट्स पाया जाता है, साथ में 21 अमीनो एसिड भी दिया जाता है। यानी कि आप सभी लोग ऑल प्लांट प्रोटीन का ट्रेनिंग भी कर चुके हो डेफिनेटली। सो अमीनो एसिड और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना एसेंशियल आप सभी लोगों को पता है, सेम हमारे पौधे के लिए भी उतना ही एसेंशियल है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, पौधे को ग्रोथ बनाने के लिए, पौधे को एनर्जेटिक रखने के लिए एसेंशियल प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन इस बॉटल के अंदर पाया जाता है। मतलब हर एक चीज, जर्मिनेशन से लेके प्लांटेशन से लेके फ्लावरिंग स्टेज से लेके फ्रूट, यानी कि फसल तैयार होना तक, जो भी उनको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, जो भी उसको खाना पीना चाहिए, हर चीज इस बोतल के अंदर दिया गया। साथ ही साथ ट्रेस एलिमेंट्स इसके अंदर पाया जाता है, एल्गेनिक एसिड बोल के इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है, जो कि मिट्टी को कंडीशन करने में मदद करता है। उसके साथ साथ पॉलीफेनॉल बोल के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें पाया जाता है, जो कि पौधे को पॉलीफेनॉल इसके अंदर पाया जाता है, जो कि पौधे को यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, पौधे का इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करता है। देन हो गया इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सीवीड्स, एक समुंदर का पाया गया घास जिसका नाम है एस्कोफाइलियम नोडोशम, इसको जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है स्प्रे ड्रायर टेक्नोलॉजी, जिस प्रोसेस से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एक्टिव मैक्स बनाया जाता है, जिसके कारण ये टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण इसका जो मेन बायो एक्टिव कंपोनेंट पाया जाता है, जो जैविक उपादान न्यूट्रिशन इस बॉटल इस घास से पाया जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम पे इसका 1% भी नुकसान नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है, खराब नहीं होता है। देन हो गया माइक्रोबायल स्टेन्स सिलेक्टेड आफ्टर एक्सपेंसिव रिसर्च। आप सभी लोगों को पता है मिट्टी के अंदर बहुत सारा अच्छा बैक्टीरिया होता है, और ये 50 साल से जो हम लोग केमिकल से जो खेती-बाड़ी कर रहे हैं, वो केमिकल का जो वेस्ट होता है, जो लास्ट जो अवशिष्ट टुकड़ा होता है, वो जाकर मिट्टी में गिरता है, और हर दिन ये फर्टिलाइजर, ये मेडिसिन, ये पॉइजन, ये टॉक्सिन, ये केमिकल सब क्या करता है, मिट्टी का अच्छा वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको पूरा खत्म कर दिया, जिसके कारण आज मिट्टी धीरे धीरे टोटल खराब होते जा रहा है। तो इस बॉटल के अंदर
जो अच्छा वाला जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का जो जूस है उस इस बॉटल के अंदर दिया गया ताकि वो मिट्टी एंड पौधे दोनों को हेल्प कर सके। और इसका अगर फॉर्मुलेशन का अगर हम बात करें, स्टेबल कंपाउंड और उसके साथ साथ प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट यानी कि इंडोफिल केमिकल का जो साइंटिस्ट लोग हैं, कई सालों की मेहनत करने के बाद जो फॉर्मूला उन्होंने डिस्कवर किया, वो एक मतलब बहुत ही साइंटिस्ट लोगों का जो मेन रिसर्च करने के बाद जो फॉर्मूला बना, उसी चीजों से इसको बनाया गया। बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो भी मटेरियल से जो भी उपादान मिलता है सब आपका ऑर्गेनिक है। लॉन्ग सेल्फ लाइफ है, यानी कि इसके अंदर कोई हानिकारक केमिकल्स भी नहीं है, ना प्रिजर्वेटिव है, लेकिन इसको जिस सिस्टम से इसको बनाया गया, ये जो दोनों सिस्टम से इसको बनाया गया, जिसके कारण ये जल्दी से खराब भी नहीं होता है। सो ओवरऑल आईनेट टेक्नोलॉजी का बेनिफिट के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो इसका मेन बेनिफिट क्या क्या है ना। सबसे पहला बेनिफिट है पौधे को सक्षम बनाते हैं और पौधे का जो ग्रोथ है बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट के अंदर शुगर एंड अमाइनो एसिड पाया जाता है जो कि मिट्टी को नरिश करने में मदद करता है। साथ ही साथ मिट्टी के अंदर एक उपादान होता है जो कि माइक्रोफ्लोरा, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। माइक्रोफ्लोरा क्या करता है, आप कोई भी छोटे पौधे को अगर जमीन से उखाड़ लोगे उसको, तो उसमें देखोगे दो टाइप का आपको जड़ मिलता है। एक सफेद रंग का थोड़ा सा पतला पतला नरम टाइप का रहता है, और एक डार्क कलर का थोड़ा सा हार्ड टाइप का जड़ रहता है। सफेद जड़ का काम क्या है ना, मिट्टी से जितना भी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है, खाना जो है, उसको अट्रैक्ट करके पत्ते तक पहुंचाना। और जो डार्क कलर का जो जड़ होता है वो क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखने में पौधे को हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, माइक्रोफ्लोरा वो सफेद रंग का जो जड़ है उसको बढ़ाने में मदद करता है, ज्यादा से ज्यादा सफेद जड़। सो जितना ज्यादा सफेद जड़ होगा उतना ज्यादा उनको क्या मिलेगा ना, न्यूट्रिएंट मिलेगा, और खाने को पत्ते तक पहुंचाने के लिए भी मदद करता है, ऊपर न्यूट्रिएंट अपटेक करने में मदद करते हैं। और जितना ज्यादा डेफिनेटली न्यूट्रिएंट मिलेगा पौधे को, उतना ज्यादा उसका जो खाना बनाने का जो प्रक्रिया हो गया, एक्टिव रहने का जो प्रक्रिया हो गया, हरा भरा रहने का जो प्रक्रिया हो गई, ये हर चीज से पौधे को मदद करते हैं। सो इतना पावरफुल है आपका एक्टिव मैक्स। अभी आगे और भी देखेंगे कि इसका कंपोजिशन इस बॉटल में है क्या जो इतना पावरफुल बना हुआ है। इसका जो मेन रॉ बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो है एस्कोफाइलियम नोडोसम, 60% इसमें अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ ओके, सो उसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड इसके अंदर पाया जाता है 5%, देन ह्यूमिक एसिड 10% एंड हाइड्रोलाइज प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड 25%। ये कुल मिला के इसका कंपोजिशन है। इस बॉटल के अंदर इतना सारा बेनिफिट पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड क्या करता है ना, पौधे का ग्रोथ बनाने में मदद करता है, बहुत सारा बीमारी से, बहुत सारा कीड़े से, मतलब इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करता है, तो जल्दी से पौधे मरता नहीं है। ह्यूमिक एसिड जो कि मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है, बहुत सालों की पेड़ पौधे का जो पत्ता हो गया, जो नरम चीज हो गया, मिट्टी के अंदर जब गाड़ जाता है और मिट्टी के साथ रहते हुए प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब करते हुए कई सालों मिट्टी के अंदर दबे रहने से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी के साथ घुल जाता है और एक बहुत ही पावरफुल पौधे के लिए न्यूट्रिएंट बन जाता है, जिसको बोला जाता है ह्यूमिक एसिड। मार्केट में आप लोग अगर देखिएगा कि दूसरा कुछ कंपनी है जो पर्टिकुलर ह्यूमिक एसिड ही 10% देके एक बॉटल खड़ा कर देता है। सो किसान को वो लोग इस्तेमाल करते हैं पौधे का ग्रोथ और अच्छा क्वालिटी उत्पाद पाने के लिए। लेकिन अगर आप एक्टिव मैक्स इस्तेमाल करोगे तो आपको एक बॉटल के अंदर ये सारे के सारे गुण मिल जाता है, जिसके लिए आपको हजारों मेडिसिन को स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। एक बॉटल हजारों चैलेंजेस का वन स्टेप सॉल्यूशन। एंड साथ ही साथ हाइड्रोलाइज प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। आप सभी लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी में अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन कितना मतलब एसेंशियल है, कितना जरूरत है। सो पौधे को भी उतना ही चाहिए, तो इस बॉटल के अंदर पाया जाता है। सो ये फॉर्मुलेशन देखने के बाद आप मार्केट में जाओगे,
बहुत ही गिने चुने वाला कंपनी इस फॉर्मूला में कोई प्रोडक्ट तैयार करते होंगे, और होंगे भी, उसका जो कॉस्ट है आपको बहुत ज्यादा आ जाएगा। सो इसलिए कंपनी बोलता है कि हम जो प्राइस में आपको जो कंपोजिशन दे रहा है, ये बॉटल आप दुनिया का जो सबसे अच्छा वाला प्रोडक्ट है उससे भी 50% ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है आपकी कंपनी की मोदी केयर की एक्टिव मैक्स। सो मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? मोड ऑफ एक्शन अगर हम बात करें, सो ये जैसे क्लोरोफिल का परसेंटेज को बढ़ाने में मदद करता है, जिसके कारण पौधे नेचुरली हमेशा हरा भरा रहने में मदद करते हैं, पौधे का इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है, इंप्रूव करता है न्यूट्रिएंट अपटेक को, खाना को नीचे से ऊपर तक पहुंचने में मदद करते हैं। जैसे मान लो लिफ्ट का काम करता है, जो हम लोग लिफ्ट में चढ़ के 10 मंजिल 20 मंजिल कई सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। सो पौधे को भी इसको बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ पौधे का जो सफेद जड़ है उसको बढ़ाने में मदद करता है। एबायोटिक स्ट्रेस और कई तरीके के स्ट्रेस को रिलीव करने में मदद करते हैं, और माइक्रोब्स को बढ़ाने में मदद करता है। मिट्टी का जो अच्छा वाला बैक्टीरियाज है वो सब चीजों को बढ़ाने में मदद करता है आपका एक्टिव मैक्स। और उसके साथ साथ अगर बेनिफिट और भी मैं बात करूं तो जर्मिनेशन को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि कम बीज में आप ज्यादा पैदावार ले सकते हो। ज्यादा बोलेगा तो आज के दिन में अगर हम 1 केजी बीज का छिड़काव करें तो लगभग 70 से 80 के आसपास बीज वो जर्मिनेशन होता है, बाकी वेस्ट होता है, खराब होता है, नुकसान होता है, डैमेज होता है, बाद में होता है। अगर हम एक्टिव मैक्स के जरिए शोधन जो बोलते हैं उसको करके अगर हम लोग इसको डालते हैं, बनाते हैं, मिट्टी को बनाते हैं, तो जर्मिनेशन में भी बहुत अच्छा फायदा देता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है, सालोक संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए पौधे का जो खाना बनाने का जो टेक्निक है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। सफेद जड़ को बढ़ाने में मदद करता है। एबायोटिक स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ बहुत अच्छा ज्यादा से ज्यादा फूल आने में मदद करते हैं। जितना ज्यादा फूल होगा उतना ज्यादा उसका उत्पाद बढ़ाने में मदद करता है। उत्पाद केवल बढ़ाना नहीं है, उत्पाद का क्वालिटी को भी बहुत बेहतरीन बनाने में मदद करते हैं, और मिट्टी का हेल्थ को भी इंप्रूव करने में मदद करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, तो आपका डेफिनेटली और कोई सवाल भी नहीं रहेगा। अगर हम बात करें कि कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हम धान के ऊपर बात करते हैं। किसान भाई क्या करता है, सीड ट्रीटमेंट का काम करता है, यानी कि धान को बीज को जर्मिनेशन करने के पहले पानी में इसको क्या करता है, डिप करके रख देते हैं। सो इसको बोला जाता है सीड ट्रीटमेंट। यहाँ पे कुछ लोग मेडिसिन भी डालते हैं, नहीं तो प्लेन पानी में डालते हैं। सो आप अगर बेटर सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हो, शोधीकरण करना चाहते हो, सो एक्टिव मैक्स का एक सोल्यूशन बना लीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ml, 1 लीटर पानी में 2 ml। अभी पानी आपका जितना लगता है उसी हिसाब से आप एक्टिव मैक्स को दीजिएगा। 5 लीटर रहने से 5 × 2, 10 लीटर पानी लगेगा तो 10 × 2 ऐसा करके। फिर उसी पानी में जैसे किसान भाई का ये डिपिंग हो जाएगा, उठा के इस पानी में भी अगेन 10 से 15 मिनट का थोड़ा सा अगेन डीप करके रखेंगे, भिगो के रखेंगे। उसके बाद उनको जैसे उठा के जैसे जर्मिनेशन उन्होंने छिड़काव करते हैं जमीन में वैसे करेंगे। सीड कोटिंग, जैसे सब्जी में पानी के अंदर भिगो के नहीं रखते हैं, वो सूखा बीज को छिड़काव किया जाता है, या तो कभी कभी कोई धान को भी सूखा बीज में भी छिड़काव किया जाता है। तो उसमें क्या करना है, अगर धान का बीज है तो 1 केजी हिसाब से, यानी कि कोई भी भारी बीज है तो 1 लीटर पानी में 1 केजी बीज में 2 ml एक्टिव मैक्स। और अगर हल्का बीज है, जैसे सब्जी का बीज हो गया, बहुत ही हल्का होता है, सो 100 ग्राम, सो 100 ग्राम में 2 ml, या तो 1 केजी में 2 ml। अभी जितना केजी या तो जितना ग्राम बीज होगा इनटू 2 ml का एक्टिव मैक्स ले लिया। एक पॉली बैग के अंदर में डाल के एक्टिव मैक्स को बहुत ही सुंदर नाजुक तरीके से, ज्यादा दबाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं दबे, मतलब दबाना नहीं है, एकदम नरम हल्का करके, छोटे बच्चे को जैसे तेल लगाते हैं मसाज करते हैं वैसे ही हल्का करके उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर जैसे उसको छिड़काव करना है वैसे वो छिड़काव कर सकता है। रूट डिपिंग, यहाँ पे 2 चीज के बारे में बात करूंगा। एक, धान का बीज जब तैयार हो जाता है उसको जमीन से निकाल के फिर नया एक दूसरा जमीन बना के वहां पे फिर से रोपाई किया जाता है या रोपण किया जाता है।
और नर्सरी में गाछ को पौधे को कॉलम करते हैं। कैसे करते हैं? तो ये एक ब्रांच होता है पौधे का, सो उस ब्रांच में थोड़ा सा कट देते हैं, कटने के बाद वहां पे थोड़ा सा मेडिसिन, थोड़ा सा खाद डाल के फिर पन्नी से, पॉलीपैक से उसको रैप कर देता है, और कुछ दिन के बाद वहां से फिर जड़ निकलना स्टार्ट होता है। जी जड़ निकल गया, फिर नीचे से काट के उसको जमीन में या तो गमले में वो लोग डाल देते हैं कॉलम करने के लिए। सो जब काटने के बाद आप मेडिसिन दे रहे हो या तो खाद दे रहे हो, उसके साथ भी 1 से 2 ड्रॉप आप यहाँ पे एक्टिव मैक्स भी दे सकते हो। और दूसरा, धान के लिए सेम 1 लीटर पानी में 2 ml का एक्टिव मैक्स का सोल्यूशन बना लेना है, और जैसे ही आपने जमीन से धान के चारा जो है, बीज जो है, उसको उठा लिए, उठा के इसी एक्टिव मैक्स का सोल्यूशन में 4 से 5 मिनट का आप क्या करोगे, डीप करके रख दोगे। उसके बाद उसको जैसे आपको रखना है, बंडल बना के हो या बंडल बना के भी आप डीप कर सकते हो, फिर रख दिया, फिर नए जमीन में जैसे आपको रुपाई करना है वैसे आप कर सकते हो। तो आपको सेम बेनिफिट मिलेगा, मतलब पौधे को जल्दी, क्योंकि एक जमीन से उठा के दूसरा जमीन में फिर से प्लांटेशन करने के लिए किसान को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो और फिर नए जमीन में जाके जब तक जड़ मिट्टी को नहीं पकड़ेगा, मिट्टी से खाना को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक उनको खाना पीना सब बंद हो जाता है। तो उसमें बहुत सारा पौधे जो है, बहुत सारा चारा जो है, छोटा पौधे जो है डैमेज हो जाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत उसको मदद करने में मदद करते हैं। फिर हो गया फोलियोर स्प्रे। फोलियोर स्प्रे का मतलब क्या हो गया? पौधे का ऊपर में स्प्रे करना। सो कब कब हम स्प्रे कर सकते हैं धान के लिए? एक हो गया वेजिटेटिव स्टेज, दूसरा हो गया प्री फ्लावरिंग, एंड तीसरा हो गया आपका फ्रूट्स आने के पहले। यानी कि जैसे ही आपने धान को उठा के रुपाई कर दिया, रुपाई का 20 दिन में, मतलब प्लस माइनस 20 दिन में किसान लोग क्या करता है, फिर डबल डोज देता है, दूसरा खाद का इस्तेमाल करते हैं। उसी टाइम पे 1 लीटर पानी में 1 ml, या तो 1 एकड़ जमीन में 200 ml, या तो 1 बीघा जमीन में 60 ml, अगर आप पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हो तो 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के स्प्रे कर दीजिए। अगर स्प्रे नहीं कर सकते हो तो आप रेती, बालू के साथ 1 एकड़ जमीन में 200 ml सूखा सूखा करके एकदम मिक्स करके, तो पूरा जमीन में मिट्टी के ऊपर चारों ओर घूम घूम के उसको छिड़काव कर दीजिए। और 1 बीघा जमीन के लिए 60 ml, 60 ml। तो ये क्या वेजिटेटिव स्टेज में। प्री फ्लावरिंग, जब धान का मंजी आना स्टार्ट होता है, जैसे ही कुछ दिन के बाद फिर धान का फूल आना जो स्टार्ट होगा, वो फूल आने के जस्ट पहले, और एक बार सेम प्रोसेस, 1 लीटर पानी में 1 ml, 1 एकड़ जमीन में 200 ml, 1 बीघा जमीन में 60 ml। अगर स्प्रे कर सकते हो तो पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दो, स्प्रे नहीं कर सकते हो तो बालू के साथ मिला के, रेती के साथ मिला के, सूखा सूखा करके मिला के आप पूरा जमीन में छिड़काव कर दीजिए। संजय भाई, बालू कितना लेना है? जितना बालू, जितना सूखा चीज जो है 1 एकड़ जमीन को कवर कर पाएगा किसान भाई, उतना ही लेगा। एंड लास्ट में जब धान बनना स्टार्ट हो जाएगा, धान अभी बनना स्टार्ट हो गया, अंदर में देखोगे लिक्विड रहता है, व्हाइट कलर का, एक दूध बनना स्टार्ट हो जाता है। उसी जस्ट दूध बनने का टाइम पे 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के हम लास्ट एंड फाइनल स्प्रे करेंगे। सो ये गया आपका धान के लिए कंप्लीट, आपका जर्मिनेशन से लेके आपको फसल काटने के पहले तक जो जो आपको स्प्रे करना है या तो छिड़काव करना है। बड़ा जो पौधे होता है, आम हो गया, जाम हो गया, लीची हो गया, अमरूद हो गया, इस टाइप का पौधे में, बड़े बड़े पौधे में, नारियल पौधे में कैसे करना है? किसान लोग जैसे इसको करते हैं सेम करेंगे। कोई भी मेडिसिन के साथ मिला के हो या पानी के साथ मिला के हो, 1 लीटर पानी में 1 ml, एक ही डोज है, हर 15 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। या तो किसान को जब उसका रिक्वायरमेंट है कि पौधे को थोड़ा सा तेज लाना है, थोड़ा सा उसको हर काम को ठीक ठाक से करवाना है, ज्यादा से ज्यादा फूल लाना है, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद लाना है, तो किसान भाई लोग हर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में वो एक्टिविटी सब करते रहते हैं। सो हमें किसान के अंदर घुसना नहीं है, आपके प्रोडक्ट कब कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, उसी चीज को किसान भाई को खाली कनेक्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। किसान भाई बड़े बड़े पौधे में जैसे जब जो कुछ भी स्प्रे करते हैं उसके साथ एक्टिव मैक्स को मिला के दे सकते हैं, 1 लीटर पानी में 1 ml। अब सब्जी का अगर मैं बात करूं तो सब्जी का ये वाला स्टेज में
ये वाला स्टेज में आपका सब्जी जहां पे हो वो है। ये जैसे ही हो गया, आप जमीन में जैसे ही सब्जी बनना स्टार्ट हो गया, बीज को आपने सोलन कर लिया एक्टिव मैक्स से और मार्केट का मेडिसिन दे के, फिर आपने छिड़काव करने के बाद आइदर आपका 8 से 10 पत्ता या तो 6 से 8 इंच जब पौधे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद से हर 10 दिन का इंटरवल में 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव मैक्स को मिक्स करके वो स्प्रे कर सकते हैं। संजय भाई जरूरी है 10 दिन का इंटरवल में ही देना है? वो किसान भाई का मर्जी है। उनका पौधा अगर ठीक ठाक है तो 10 दिन क्यों, 20 दिन में या 25 दिन में एक बार देगा। लेकिन पौधे में थोड़ा सा ग्रोथ कम हो रहा है, थोड़ा सा हरा भरा कम हो रहा है, तो इस टाइप का अगर कुछ है तो 1 लीटर पानी में 1 ml हर 10 दिन में एक बार करके दे सकते हैं। सो ये रहा आपका इसका डोजेज। अब चलते हैं इसका कैरेक्टर, कैसा है प्रोडक्ट। इसको देखने में डार्क कलर का, काला रंग टाइप का लगता है, डार्क ब्राउन या तो ब्लैकिश टाइप का लगता है। विस्कोस लिक्विड है ये, यानी कि बहुत गाढ़ा एक लिक्विड है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कोई भी चीजों के साथ बहुत जल्दी घुल जाता है, मिल जाता है। नॉन टॉक्सिक इन नेचर, इसके अंदर कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं है, जिसके कारण आप इसको मेडिसिन के साथ भी मिला के स्प्रे कर सकते हो और उसके साथ साथ आप प्लेन पानी के साथ मिला के भी स्प्रे कर सकते हो। जो चीज किसान भाई को सुटेबल लगता है वैसे ही वो कर सकते हैं। जितना चाहिए उतने का इस्तेमाल कीजिए, बाकी उसका ढक्कन को अच्छी तरह से टाइट करके रख दीजिए। एक बार अगर आप खरीदते हो, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट से 5 साल तक आप इस प्रोडक्ट को रख सकते हो, कभी भी ये खराब नहीं होता। 5 साल तक इसका जो सेल्फ लाइफ जो है 5 साल तक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। जितना बार इसको यूज करोगे अच्छी तरह से 2-4 सेकेंड इसको प्रोडक्ट को सेक कर लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद जितना चाहिए उतना अपने ml का माप से इसको लिया, टंकी में डाला, ढक्कन लगाया, ऊपर में दीजिए। तो ऐसा करके इसको यूज कर सकते हो। अब बात करेंगे इसका कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मिट्टी के अंदर से जो भी खेती बाड़ी होता है, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे धान का खेत हो, चाहे सब्जी का खेत हो, हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। पैक साइज कितना है, कैसे इस्तेमाल करना है? 2 पैक साइज में आता है, एक 100 ml का सेट में और एक 500 ml का बॉटल में। 500 ml का बॉटल एमआरपी कितना है? 744 रुपीज। जो मार्केट से इसी कॉम्पोजिशन का कोई प्रोडक्ट आप देखने जाओगे कम से कम 1500 से लेकर 2000 रुपए के आसपास आएगा 500 ml का। लेकिन मोदी केयर आप लोगों के लिए देते हैं केवल 744 रुपीज में। और इसका डिस्काउंट प्राइस आप लोगों को प्राइस कितना है? 647 रुपए। और इसमें बिजनेस वॉल्यूम जो है 388 इसमें बिजनेस वॉल्यूम है। जो सुपर्णा जी बोल रहे थे बहुत ही अच्छे इसमें हाई बीवी प्रोडक्ट है, ये 60% बीवी प्रोडक्ट है। सो बहुत अच्छा आपको बीवी भी देगा, प्रॉफिट भी देगा। 100 ml का सेट का क्या रेट है? एक सेट में आपका 3 पीस, ऐसे 100 का 3 बॉटल का सेट होता है, तो एक सेट का एमआरपी है 546। ओके, सो एक बॉटल में आपका एक सेट में 3 पीस का 100 ml का रहता है, तो इसका एमआरपी 546 रुपीस है। डीपी का अगर हम बात करें 474 है और बिजनेस वॉल्यूम 284 है। तो दोनों प्रोडक्ट ही आपका 60% बीवी है और बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। तो ये गया आपका एक्टिव मैक्स। अब बात करेंगे एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड के ऊपर। एक्टिव 80 क्या है ना? एक्टिव 80 गोल्ड जो है ग्रो गोल्ड ऑन ट्री, यानी कि आप इस प्रोडक्ट को प्रॉपर अगर यूटिलाइज कर सकते हो तो सही में बोलने का बात है क्या आप अपना पौधे में सोना भी उगा सकते हो। सो एक्टिविटी क्या है ना? ऑल पर्पस नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेटेड, ये सब चीजों में इस्तेमाल करने वाला एक नॉन आयनिक, अगेन इस प्रोडक्ट के अंदर में भी ऐसा कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं है, जिसके कारण कोई भी चीजों के साथ मिला के आप इसको यूज कर सकते हो। एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल से सिंचाव के लिए, उसके साथ साथ अगर हम इस प्रोडक्ट के जरिए सिंचाव करते हैं सो पानी को मिट्टी के अंदर तक, जड़ तक पहुंचाने में मदद करते हैं।
तीन टेक्निकल में काम करने में मदद करता है, एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर विथ नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट है। इट्स इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल एंड सेफ ऑन क्रॉप। ये प्रोडक्ट जो है 100% इको फ्रेंडली है, कोई हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं करता है, बायोडिग्रेडेबल है, मिट्टी को भी खराब नहीं करता है, सेफ ऑन क्रॉप एंड फार्मर, किसान को और खेती को दोनों को ही खराब नहीं करता है, एक्टिव मैक्स जैसा। लेकिन कभी कभार आप लोग सुनने को आप लोगों को आएगा कि एक्टिवेट के इस्तेमाल करने के बाद पौधे जो है लाल हो गया। हाँ होगा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट खराब है? नहीं, खराब नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूं, आप लोग कोलकाता वासी हो, वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो आप लोगों का फेवरेट जो ये स्वीट्स है वो है रसगुल्ला। रसगुल्ला का 4 पीस करके हर दिन लोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, खाने में मजा आएगा। रसगुल्ला के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, आपका एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि आपको काम करने का क्षमता को बढ़ा देता है, आप हमेशा हंसी खुशी रहोगे। लेकिन यही 4 पीस रसगुल्ला अगर साथ में जीरो डाल दोगे, 40 पीस करके हर दिन खाओगे, तो 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आपको मेडिकल जाना कंफर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है इतना हाई हो जाएगा कि आप उसको मतलब रोक ही नहीं पाओगे, राइट? तो इसका मतलब क्या है? रसगुल्ला खराब है? कोई आप बोलोगे रसगुल्ला खराब है? नहीं, हर चीजों का एक रिएक्शन है। अगर आप कंट्रोल में लिमिट में इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट के बाहर हम जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। सो एक्टिवेटी का जो डोजेज है मैं लास्ट में आपको बताएंगे, 5 ml 15 लीटर पानी में कोई भी मेडिसिन के साथ है। लेकिन कुछ लोग उसको 15 ml डालते हैं, कुछ लोग उसको 25 ml डालते हैं। वही 4 पीस रसगुल्ला और 40 पीस रसगुल्ला, दोनों में जो रिजल्ट है इसका भी काम वही है। क्योंकि ये क्या करता है? एक्टिवेटर करता है, वेटर का काम करता है, स्प्रेडर का काम करता है। सो एक्टिवेटी गोल्ड और एक्टिवेटी, ये दोनों प्रोडक्ट में क्या अंतर है? शुरुआत में मैं आप लोगों को बता दिया था, दोबारा और एक बार बोल दूं कि एक्टिवेटी और एक्टिव गोल्ड में यही अंतर है। एक्टिव गोल्ड पहले मैं बात कर रहा हूं, एक्टिव गोल्ड इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड with 80% active ingredients natural vegetable based surfactant, यानी कि एक्टिवेटी गोल्ड हो गया कि एक वेजिटेबल बेस्ड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। और एक्टिवेटी क्या है? एक्टिवेटी इज ए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट विथ 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सिंथेटिक बेस्ड सर्फेक्टेंट। सो एक्टिवेटी हो गया सिंथेटिक बेस्ड और एक्टिव गोल्ड हो गया आपका नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट। काम कैसे करता है? एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर। एक्टिवेटर, कभी भी आप एक्टिवेटी को कोई भी चीजों के साथ मिक्स कर देते हो तो उसको और भी पावरफुल बना देता है, वेस्टेज को कम कर देता है। वेटर, आज के दिन में हम इतना सारा केमिकल के साथ खेती करते हैं जिसके कारण क्या होता है ना, वो मिट्टी इतना हार्ड हो जा रहा है और मिट्टी का पानी को सोखने का क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण वो प्रॉपरली पानी को पौधे का जड़ तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो अगर हम एक्टिवेटी के साथ या एक्टिवेटी गोल्ड के साथ उस पानी का सिंचाव करते हैं तो जल्द से जल्द उस पानी को मिट्टी के अंदर तक एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है। स्प्रेडर, आज के दिन में हम लोग जिस एरिया में काम करते हैं वहां पे हमेशा हर चीज मैनुअल करते हैं, लेकिन आप एक्टिवेटी के साथ करोगे तो हर चीज को सही में हर तरफ फैला देने में मदद करता है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। इसके लिए पानी कम लगता है, मेडिसिन भी कम लगता है, किसान का लेबर भी खर्चा भी कम लगता है। कंफर्टेबल है, नॉन कॉरेसिव है। कंफर्टेबल यानी कि कोई भी मेडिसिन के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, उस मेडिसिन का या तो एक्टिविटी का कोई दोनों में क्लैश नहीं होता है, ना दोनों का कुछ नुकसान होता है। नॉन कॉरेसिव, इसके अंदर ऐसा एक इंग्रेडिएंट्स भी डाला जाता है जिसके कारण आप खेत में जो भी लोहे का चीज को इस्तेमाल करते हो जल्दी से उसमें आपको जंग लगने नहीं देता है। तो ये इसका फीचर है। बेनिफिट का अगर हम बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है, इसलिए आपको कम यूज में आपको ज्यादा फायदा देता है, कम मेडिसिन में ज्यादा स्प्रे कर सकते हो। इको फ्रेंडली, पहले ही बोल चुका हूं, इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल, सेफ ऑन क्रॉप,
सो ना खेत का कोई नुकसान करता है, ना मिट्टी का, ना एनवायरमेंट का, ना किसान का, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। हर चीज को यूनिफॉर्मली स्प्रे करने में मदद करता है और हर चीज को, मेडिसिन को, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड हो या ऑयल बेस हो, पानी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाने में मदद करता है, जिसमें किसान को स्प्रे करने में भी बहुत मजा होता है। और जब पानी का स्प्रे निकालता है एकदम धुआं जैसा, कुआसा जैसा बहुत ज्यादा एरिया को फैल के ये स्प्रे होता है, जिसके कारण अगेन किसान का समय, खर्चा, लेबर, मेडिसिन कम करने में मदद करते हैं। और जैसे धान के पत्ते में पानी नहीं लगता है, जो ऑयल बेस्ड पानी होता है या तो आपका पाउडर बेस्ड, सॉरी ऑयल बेस्ड पत्ते होता है, पाउडर बेस्ड पत्ते होता है, तो इस टाइप का पत्ते को भी आसानी से भिगो देने में मदद करता है, हर चीज को ऊपर से नीचे तक लाने में मदद करते हैं। मैक्सिमम फर्टिलाइजर और मैक्सिमम पेस्टिसाइड, यानी कि कोई भी चीजों के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। और सबसे मेन बात है, जो स्पेयर नोजल कभी कभी थोड़ा सा जैम हो जाता है किसान भाई का, जो जिसमें से स्प्रे करते हैं मेडिसिन को, वो नोजल को भी ये जल्दी से जैम होने नहीं देता है। जैम हो जाने से क्या होता है, वहां से ड्रॉप ड्रॉप करके मेडिसिन नीचे मिट्टी में गिर जाता है, तो इसमें भी किसान भाई का बहुत सारा मेडिसिन का वेस्टेज हो जाता है। और अगर नोजल एकदम फ्री रहेगा तो आसानी से बहुत दूर तक वो स्प्रे कर सकता है। तो इतना सारा बेनिफिट हम एक्टिविटी से ले सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, किसान भाई कोई भी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, कोई भी विटामिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्टिव मैक्स, और एक्टिव मैक्स का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मार्केट का दूसरा विटामिन की जरूरत नहीं होगा। सो कोई भी विटामिन, कोई भी कीड़े मारने का दवा, कोई भी बीमारी ठीक करने का दवा, कोई भी स्प्रे कर रहे हो, हर 15 लीटर पानी में 5 ml आपको डालना है। तो अगर आप 5 ml करके डालते हो तो फायदा क्या है ना, आपको लगभग 30% का समय, खर्चा, लेबर को, मेडिसिन को कम करने में मदद करते हैं। और जो पैसा आपका बचते हैं उसी पैसा का थोड़ा सा खर्चा करके आप एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हो। देन हो गया आपका हर्बिसाइड, कंपनी का डोजेज है 15 लीटर पानी में, जो घास मारने का दवा का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ 20 ml देना। क्योंकि कभी कभार हम देखा है किसान भाई को जितना भी आप समझाओ, उन लोगों का दिमाग में एक सोच रहता है कि हम कम देने से कम हमारा काम होगा, ज्यादा देने से ज्यादा काम करेंगे। सो हर्बिसाइड जो है वन टाइप ऑफ केमिकल से एसिड है, जो कि आपका जो फाइबर टाइप का जो पौधा होता है उसको जला देता है, मार देता है। सो अगर हम इसमें भी एक्टिविटी ज्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा नॉर्मल जो खेत है वो भी डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए घास मारने का दवा के साथ अगर खेती बाड़ी चल रहा है तो 5 ml डालेंगे। और अगर एकदम खाली जमीन है, उसमें खेती बाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, किसान भाई समझा कि पहले हम घास मारने का दवा दे देते, उसके बाद हम खेती बाड़ी करेंगे, तो इन दैट केस आपको 15 लीटर पानी में उनका मेडिसिन जितना चाहिए उतना डालेगा और उसके साथ 20 ml एक्टिव 80 का इस्तेमाल करेंगे। एंड तीसरा हो गया इरिगेशन, सिंचाव। सो जो भी आप सिंचाव करते हो उसमें मिट्टी हार्ड होने के कारण बहुत सारा पानी वेस्टेज होता है, ना खराब होता है, नुकसान होता है। सो 1 एकड़ जमीन में 200 ml या तो एक बीघा जमीन में 60 ml कोई भी चीजों के साथ मिक्स करके, पानी के साथ, खाद के साथ, रेती के साथ, बालू के साथ, अगर आप 1 एकड़ जमीन में पानी सिंचाव करने के जस्ट पहले अगर आप दे देते हो, सो आप इस बॉटल से भी बहुत अच्छा फायदा ले सकते हो। कम समय, कम पानी, कम खर्चे में आप ज्यादा जमीन को इरिगेशन, सिंचाव कर सकते हो। चौथा एक अनऑफिशियली है, इसमें कंपनी का डोजेस नहीं है, कोई किसान लोग इस तरीके से इस्तेमाल करने से उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला तो इसलिए बोलता हम लोग इसको भी करते हैं। जैसे कोई भी खाद देते हो, खाद के साथ भी पर केजी खाद में 5 ml डाल सकते हो, उसमें 20% का खाद को कम करके। सो उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। कंपनी का डोजेस नहीं है, लेकिन इसमें भी खाद के साथ भी एक्टिव 80 को इस्तेमाल करने से किसान भाई को बहुत ज्यादा फायदा मिल चुका है। अब अगर हम इसका यूजेस देखें, कहाँ हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अगेन इस प्रोडक्ट को भी मिट्टी से जो भी खेती बाड़ी होता है और उसके लिए किसान जितना बार स्प्रे करता है कोई भी चीज, उसके साथ एक स्प्रे में 15 लीटर पानी में, 15 लीटर टैंकी में उनका मेडिसिन जितना चाहिए उतना दिया, 5 ml एक्टिव 80 दिया। 1 एकड़ जमीन में 200 ml एक्टिव 80 दिया, 1 बीघा जमीन में 60 ml एक्टिव 80 देके वो सिंचाव कर सकते हैं। और खाद का
1 kg खाद में 5 ml, लेकिन 20% खाद को कम करने के बाद। सो एक्टिव गोल्ड का अगर मैं पैक साइज के बारे में बात करूं, एक्टिव गोल्ड आपका एक ही पैक साइज में आता है। 500 ml का पैक साइज है, जिसका एमआरपी 599 है, डीपी 521 है और बीवी 313। यानी कि इस प्रोडक्ट में भी आपका 60% बीवी है, जिसके जरिए आप बहुत अच्छे इसका फायदा ले सकते हो। एंड एक्टिवेटी का अगर हम बात करें तो एक्टिवेटी में आपका टोटल 3 पैक साइज है, 100 ml का सेट, 500 ml का बॉटल एंड 5 लीटर का बॉटल। सो ये एक्टिव गोल्ड एक पैक साइज और एक्टिव 80 जो नॉर्मल है वो आप 3 पैक साइज में ले सकते हो। सो चलिए, ये तो गया, यहाँ तक तो गया किसान भाई का फायदा कि किसान भाई को क्या क्या फायदा हो रहा है। अब हम बात करेंगे आपके क्या फायदा है इस बॉटल को लेके काम अगर हम लोग करते हैं तो। मैं एक मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर आप लोगों के साथ जो भी क्वेरी होगा हम बात करेंगे। मान लो कोई एक गांव में गया जहां पे आपका लगभग क्या बोलूं मैं, मान लो 500 घर है और पर घर में 5 बीघा करके जमीन है। सो उस गांव में कितना टोटल जमीन हो गया, 2500 बीघा का जमीन हो सकता है। 1 बीघा में एक्टिव 80 कितना चाहिए, 1 बॉटल चाहिए। 1 बीघा में एक्टिवेटी गोल्ड एक्टिव मैक्स कितना चाहिए, 1 बॉटल चाहिए। कम ज्यादा 1 बॉटल एक्टिव मैक्स और 1 बॉटल आपका एक्टिवेटी चाहिए। सो अगर 10 लोगों को हमने एक्टिव मैक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया, आप लोगों का सेटिस्फेक्शन के लिए, सो जो टेक्निकल किसान भाई है उनको पूरा टेक्निकल तरीके से समझाइए, जो नॉन टेक्निकल किसान भाई है तो उनको 1 मिनट में एक्टिव मैक्स का फायदा समझाइए। कैसे समझाएंगे कि भाई आप तो इस्तेमाल करते हो, सो ऐसा प्रॉब्लम होने से क्या करते हो, वैसा प्रॉब्लम होने से कितना टाइप का मेडिसिन आप लोग यूज करते हो, हार्मोन अलग हो गया, मिनरल्स अलग हो गया, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया, राइट। लेकिन मोदी केयर का जो एक्टिव मैक्स है, ये 1 बॉटल में हर चीजों का कॉम्बिनेशन दिया गया ताकि किसान भाई को बार बार हर चीज के लिए स्प्रे करने की जरूरत ना पड़े। सो ऐसा करके आपने एक मिनट के एक्टिव मैक्स का प्रेजेंटेशन दिया और 10 मिनट में आपने एक्टिवेटी का जो हम लोग का सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन है वो सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन आपने दिखाया। और ये 10 किसान को अगर आप दिखाते हो, मान लो 10 किसान भाई को आप लोग दिखाते हो और उसमें से केवल 3 किसान भाई आपसे एक्टिवेटी 1 बॉटल लेता है, एक्टिव मैक्स 1 बॉटल लेता है, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। सो 750 हमारे पास, सॉरी 2500 टोटल एकड़ का जमीन है। सो 2500 एकड़ या 2500 बीघा का जमीन में अगर 30% हम पकड़ लेते हैं तो 750 होता है। 750 किसान भाई हमसे 1 बॉटल का एक्टिवेटी ले सकता है, 1 बॉटल का एक्टिव मैक्स ले सकते हैं। ठीक है, ये गया पहला। दूसरा, एक्टिविटी का प्रोग्राम जब कहीं पे भी आप करोगे, आधा घंटे के अंदर टोटल प्लान प्रेजेंटेशन एंड क्वेरी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे 31 मिनट लगना नहीं चाहिए। सो अगर आप आधा घंटा करते हो और 5 से 10 मिनट का आपका क्वेश्चन आंसर सेशन और लेन देन, ये करके मान लो आधा घंटे में 1 मीटिंग आपको खत्म करना है। सो अगर 1 मीटिंग में आधा घंटा और आप काम वहीं पे करो, आपको यहाँ से 1000 किलोमीटर ट्रेवल करने की जरूरत नहीं हो। मेरा मासी का, मौसा का, पाका का, दीदी का, भाई का, बहन का गांव है, वहां पे जाएंगे, जरूरत नहीं है। कोई भी गांव में आप जाइए कि मेरा नाम संजय घोष है, हम लोग एक कंपनी से आए हैं, कि आप लोग जो खेती करते हो वो खेती बाड़ी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे आप कम समय, कम खर्चा, कम मेहनत में आप ज्यादा उत्पादन ले सकते हो और मिट्टी को ठीक कर सकते हो। और ये ट्रेनिंग करने के लिए हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं और लाइव डेमो करके दिखाते हैं। और डेमो दिखाने के लिए हमें केवल 5 लोगों की जरूरत है जो किसान भाई है, भले उनका 1 बीघा जमीन हो या 100 बीघा का जमीन हो, कुछ भी हो। सो 5 लोगों को जुगाड़ करना है। जैसे आप मीटिंग स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली देखोगे आसपास से लोग आना स्टार्ट हो गए। सो ऐसा करके आप कर सकते हो। आपका जहाँ पे घर है, घर का 10 किलोमीटर का रेडियंस में आपको काम करना है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ताकि आप जल्दी से जाओ और जल्दी से फिर घर वापस आ जाओ। सो एक मीटिंग आधा घंटा, 2 मीटिंग अगर हम करते हैं तो 1 घंटा का हमारा मीटिंग है, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, यानी कि टोटल 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अगर आप दिन में काम करते हो। और महीने में 30 दिन है, मैं आपको 30 दिन नहीं बोलूंगा मोदी केयर का काम करने के लिए, आपको दिन में 3 घंटा काम करना है, महीने केवल 15 दिन ही काम करना है। सो दिन में 3 घंटे में अगर आप 2 मीटिंग करते हो, 15 दिन में आप कितना कर सकोगे, 30 मीटिंग कर सकोगे।
पर मीटिंग में धीरे धीरे, एक दिन में नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 750 बॉटल का आपका ऑर्डर हो सकता है। 10 लोग में अगर 3 लोग लेता है तो 750। कंपनी जस्ट आधा बता रहा है कि अगर आप एक महीने के अंदर कंपनी से 346 बॉटल का एक्टिविटी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका बिजनेस वॉल्यूम पहुंच जाता है 1,08,000। 4,007 पीवी, यानी कि डायरेक्ट आप 16% में आ सकते हो, जिसके अगेंस्ट में आपको कंपनी का इंसेंटिव मिलता है 17,306 रुपए। रिटेल प्रॉफिट है 26,988 रुपीस, यानी कि कुल मिला के 44,000 रुपए का आप प्रॉफिट कर सकते हो एक्टिविटी में, हाफ में। और अगेन 340 में 44,000। सो इसको अगर हम डबल कर देते हैं, 750 का जरूरत भी नहीं है, आप इसको और इसको डबल कर दो, यानी कि 44,000 और 44,000 कितना हो गया, लगभग 90,000 हो गया। सो 90,000 को आप राउंड फिगर में 1 लाख पकड़ लो। सो एक गांव से आप 1 लाख इनकम कर सकते हो, राइट, एक गांव से। अभी आप लोग जो मन में सोच रहे हो वो बात भी सही है कि दुनिया इतना इजी नहीं है, तो हर दिन हर लोग लाखपति बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि आपका 30 गांव में जान पहचान है और 30 गांव में आप काम कर रहे हो, 30 गांव में अगर आप एक एक कंसल्टेंट देते हो तो उनका बिजनेस वॉल्यूम कहाँ जाता है, 1 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख बीवी में आपका आराम से मोटा एलपीवी बन सकता है। तो हम प्लान में नहीं जा रहा है, हम खाली एक्टिविटी का सपोर्ट आपको बता रहा है। सो दोनों मिला के अगर आप 40,000 छोड़ दीजिए, एक 40,000 44,000 छोड़ दीजिए, एक कोई अगर पकड़ लेंगे कि उसमें भी कुछ लोग बोलेगा देखता हूँ, कुछ लोग उधारी मांगेगा, कुछ लोग डिस्काउंट मांगेगा, तो खाली 40,000 पकड़ लो। 40 इंटू 30 गांव कितना हो गया, 12 लाख रुपए। और एक गांव में 2 लाख का एलपीबी लेग और 30 लेग अगर आपका 2 लाख का एलपीबी लेग है तो सुपर्णा मैडम यहाँ पे है, गौतम सर यहाँ पे है, मेरे को कैलकुलेशन इतना आता नहीं है, ये लोग आपको बता देगा। 30 लेग में 30 टीम में अगर आपका 2 लाख का एलपीबी लेग आ गया तो आपका टाइटल और आपका बाकी मोदी केयर से इनकम क्या होगा, अगर आप कर दिए तो आप खुद ही पागल बन सकते हो। तो हमें आपको पागल नहीं बनाना है, आपको हमें मोदी केयर का प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी भर रहना है। अगर आप ठान लोगे तो जीत है, मान लोगे तो हार है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपका सक्सेस के लिए कंपनी मोदी केयर और आपकी अपलाइन टीम मेंबर सब लोग एक साथ है, कैसे आपका इनकम को हम बढ़ाएं। सो इसी के साथ फिट प्लान, पौधे को अगर आप खिलाओगे तो वही पौधे हमें दोबारा खिलाएगा, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी इनकम में, इन टर्म्स ऑफ खाना के रूप में। सो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच अगेन गौतम सर, आपको आप हमें एक मौका देने के लिए कि आपकी टीम के लिए हम कुछ बोल पाए। सुपर्णा मैडम, आपका इंट्रोडक्शन सुपर माइंड ब्लोइंग। सो बाकी हमारा टोटल प्रेजेंटेशन खत्म। अभी आप लोग अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोगों का म्यूट को मैं खोल देता हूँ। तो आप लोगों का म्यूट को मैं खोल दिया। अभी आप लोग अपना खुद को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, लेकिन उसके पहले मैं गौतम सर को रिक्वेस्ट करूंगा फेसबुक लाइव का भी बंद कर दीजिए और इसका लिंक हमें भी भेज दीजिएगा सो दैट मैं भी अपना टीम के लिए भी भेज दूं। ओके, देवदत्त जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो? হ্যাঁ স্যার, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, বলছি অ্যাক্টিভ ম্যাক্স কে কি কোনো পেস্টিসাইডের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে? অনেক সময় চাষিরা জিজ্ঞেস করে, মানে পেস্টিসাইডের সঙ্গে অ্যাক্টিভ ম্যাক্সও দিয়ে দিলাম, সেটা কি দেওয়া যেতে পারে? হ্যালো, আমি আপনাদের এই জায়গাতে বলেছিলাম নন টক্সিক ইন নেচার, হাইলি সলিউবল ইন ওয়াটার। যে কোনো মেডিসিনের সঙ্গে আপনি অ্যাক্টিভ ম্যাক্স কে ইউজ করুন। অ্যাক্টিভ ম্যাক্স জিজ্ঞেস করলেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কোনো জিনিসের সঙ্গে আপনি অ্যাক্টিভ ম্যাক্স কে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন বা প্লেন জলের সঙ্গে মিশিয়েও আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আর আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি স্যার, যদি গাছে পোকা থাকে সেই অবস্থায় যদি চাষি ভাইদের মনে হয় যে ওদের হরমোন বা অ্যাক্টিভ ম্যাক্স দিতে হবে, তাহলে কি সেই অবস্থায় দেয়া যায়?
অবশ্যই দিতে পারবে। সেই পোকা লাগার ওষুধের সঙ্গে বা রোগ লাগার ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে এটাকে ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা নন মিশিয়ে টক্স হ্যাঁ, নন টক্সিক ইন নেচার, ইয়ানি কি এর মধ্যে কোনো রকম আপনার কেমিক্যাল নেই, তো যে কোনো মেডিসিনের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট কোয়েরি। সঞ্জয় দা, আমার একটা প্রশ্ন আছে। নিশ্চয়। আমি একটা মিটিং এ গেছিলাম, সেখানে আমাকে বলা হয়েছিল যে আমরা জানি যে আমরা যদি জলসেচ ইরিগেশন করার আগে অ্যাক্টিভেটি বা অ্যাক্টিভেটি গোল্ড বেসিক্যালি যদি মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে তারপরে জলসেচ করি, তাহলে কম সময়ের মধ্যে মাটিটা অনেক বেশি ভিজবে এবং অনেকদিন সেটা স্টে করবে। তো তাদের প্রশ্ন, তাহলে কি ওই অল্প সময়ের মধ্যে বেশি জল নিয়ে নিচ্ছে? তো আপনারা যে বলছেন যে জলটা যে কম লাগছে, সেটা কি করে হচ্ছে? অত বেশি তাহলে ভরাচ্ছে কি করে? মানে জলটাকে অত বেশিক্ষণ রাখছে কি করে, অত বেশিক্ষণ তাড়াতাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে? তাহলে কি কম সময়ের মধ্যে সেই বেশি জলটাই নিয়ে নিচ্ছে? নাম্বার ওয়ান, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন আপনি অ্যাক্টিভিটিটা আপনার জমিতে ছড়াচ্ছেন না আপনার যে কি বলে ওটাকে, যে মেশিন দিয়ে জলটা আসছে সেই মেশিনের ভেতরে ঢোকাচ্ছেন, কোনটা করছেন? না, উনি আমাকে, মানে তখন উনি স্টার্ট করেননি, মানে উনি আমাকে, আমি যখন ওনাকে বোঝাচ্ছিলাম তখন উনি ঠিক আমাকে এই আছে, প্রশ্ন। ঠিক আছে, আপনি ওই চাষি আর আমি সুপর্ণা ম্যাডাম, ঠিক আছে? আপনি আমাকে প্রশ্ন করলেন যে জলটা কি বেশি নিয়ে নিচ্ছে, তাই তো? এবার আমি আপনাকে এক একটা করে উত্তর দিচ্ছি, তার উত্তরগুলো আপনি আমাকে দেন। আপনাকে আমি অ্যাক্টিভিটি কোথায় ছড়াতে বলেছি, জমির মাটির মধ্যে না ওই মেশিনের মধ্যে? মাটিতে ছড়াতে বলেছিলাম, বালি তাহলে মাটি বা তাহলে অ্যাক্টিভিটি তো আর আপনার মেশিন থেকে বেশি করে জলটাকে টেনে নিচ্ছে না। নাম্বার টু, আমাকে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলেন, প্রত্যেকদিন আপনার মাটিটা হার্ড বেশি হচ্ছে, শক্ত বেশি হচ্ছে না নরম বেশি হচ্ছে? দিনকে দিন তো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। তো শক্ত বেশিতে বেশি বেশি জল টানতে পারবে? না, শক্ত বেশিতে বেশি জল টানতে পারবে না, এই সেটা আমি কারণেই তাকে। এই কারণেই আমাদের অ্যাক্টিভিটি কি কি ভাবে কাজ করে বোতলটাতে দেখিয়ে দিন। দেখুন, অ্যাক্টিভিটি তিনটে টেকনিক্যালে কাজ করে, অ্যাক্টিভেটর, ওয়েটার, স্প্রেডার। অ্যাক্টিভেটর জলের পাওয়ারটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, জল বেশি শোষণ করছে না, জলের পাওয়ারটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওয়েটার আজকের দিনে মাটি শক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য জলটা মাটির নিচে প্রবেশ করতে পারছে না, সে কি করছে, জলটাকে মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে সাহায্য করছে। আর 3 নম্বর হয়ে গিয়া স্প্রেডারের কাজ করছে, জলটাকে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওই যে এক্ষুনি আপনাকে যে আমি কার্ডবোর্ড দিয়ে যে আমি ডেমোটাকে দেখালাম, তো ওটাতে আপনি কি দেখলেন, কি বুঝতে পারলেন? চলুন আবার আপনাকে আমি ওই কার্ডবোর্ডের ডেমোটা দেখিয়ে দিই, তাহলে আপনার শুনতে বুঝতে জানতে সুবিধা হবে। আবার দেখিয়ে দেন। বাস ঠিক। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? আমার কোশ্চেন হয়ে গেলে আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, কেউ আর আছে কি? কেউ তো এখানে হ্যান্ড রেজ করছে না। সোমা, তোমাদের কোনো কোশ্চেন? অরিন্দম দা, কিশোর? ঠিক আছে, মোটামুটি আমরা বুঝে গেছি মোটামুটি। এবারে ফিল্ডে করতে গেলে যদি প্রবলেম হয় তোমাকে জিজ্ঞেস করে নেবো। হ্যাঁ, নরেশ দা কোথায়? নরেশ দাকে দেখতে পাচ্ছেন, জানি না কোন এতে কোন আইডি দিয়ে এসেছে। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে সঞ্জয়, আমি দীঘাতে গেছিলাম এই 2-3 দিন আগে। তো সেখানে ওখানে একজন সারের একজন মানে দোকান, যার আন্ডারে প্রচুর চাষি আছে, যার ওর কথা খুব বেশ করে শোনে। তো ওর কোশ্চেনটা হচ্ছে ওনার, তো সেই কোশ্চেনটা হচ্ছে যখন ফার্টিলাইজারের সাথে আমরা মেশাচ্ছি অ্যাক্টিভেটটি, হ্যাঁ, ফার্টিলাইজারে ধরো দুটো জায়গায় চাষ হচ্ছে, কেউ সেই চাষের জায়গায় ফার্টিলাইজারে হয়তো 40 কেজি দিচ্ছে বা কেউ 30 কেজি দিচ্ছে, আমরা কেজিতে 5 মিলিমিটার 5 ml বলছি, তাই তো? কিন্তু সে বলছে যে কেউ 50 কেজি ফার্টিলাইজার দিচ্ছে, তার মধ্যে 5 ml পার কেজিতে দিচ্ছে, আবার কেউ 40 কেজি দিচ্ছে সেম ইয়ের জন্য, তাতেও 5 ml। তাহলে জমিতে কারোর কম পড়ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি, আর জমিতে কারোর বেশি পড়ছে, তাহলে জমি অনুযায়ী কত হবে সেটাকে আমি তাকে কিভাবে বোঝাবো? 1 বিঘাতে 60 ml, 1 একরে 200 ml। না, যখন আমরা কেজিতে বলছি, তো কেজিতে তো আমরা সারে তো আমি মেশাচ্ছি, সারে যখন সারে মেশাচ্ছি তখন তো কেজিতে মেশাচ্ছি, পার কেজিতে নেই। তখন কারোর কাছে বেশি যাচ্ছে, কেউ 60টা বেশি দিচ্ছে আর কেউ কম দিচ্ছে, তাতে তো জমিতে একটু বেশি চলে গেল, কারোর বেশি চলে গেল, কারোর কম চলে গেল। তাহলে সেটা ওনার প্রবলেম কোথায়?
না ওরা আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি, তাহলে কি হবে? তাহলে যদি ওরা বলছে ট্রান্সফার টু মানে কারোর বেশি হলে মানে ও জানতে চাইছে তাহলে সেই সলিউশনটা কি? আমি তাহলে চাষীদের কি বলবো? যদি জমি অনুযায়ী চায়, যে বলতে চায় জমি অনুযায়ী। আমি বলছিলাম যে সারের কেজিতে তো পার কেজিতে বলছি, কিন্তু ও বলছে জমি অনুযায়ী তাকে বোঝাবো কি করে? কারোর বেশি পড়ছে কারো কম। এটা কিভাবে বোঝাবো আর কি? এটাই আর কি। যদি জমিতে হিসাবে জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবেন 1 বিঘা জমিতে 60 ml আর 1 একর জমিতে 200 ml দেবেন। তাহলে ওইভাবে ওই এমএলটাই ওইভাবে সেই সারের মধ্যে ট্রান্সফার করে দেবে কেজিতে, তাই তো? কিন্তু তাতে অতটা বেশি রেজাল্ট পাবে না, কারণ হচ্ছে আমি সেটাই বলছি। যেখানে 200 ml লাগার কথা সেখানে 60 ml আপনি যদি দেন তাহলে 60 টাকে তো ডিসলভ করতে পারবে না। হ্যাঁ, আপনি 200 ml জল নিলেন আর 1 চামচ চিনি নিলেন, এই জলটার মধ্যে ওই চিনিটাকে যদি গুলে দেন, চিনিটা ওই জলের মধ্যে ডিসলভ হবে কি হবে না? হ্যাঁ ঠিকই, একদম হবে। হবে। এবার 200 ml জলের মধ্যে যদি 500 গ্রাম চিনি দেন আর যদি না দেন, ডিসলভ হবে? না হবে না, যতটা হওয়ার ততটুকুই হবে। তো এখানে কথা হচ্ছে যে আপনি 1 বিঘা জমিতে কতটা সারের সঙ্গে আপনি অ্যাক্টিভিটি দেবেন ওটা কথা নয়, কথা হচ্ছে যে আপনি কতটা সার দিচ্ছেন সেই সারটাকে তো ডিসলভ করাতে হবে। এক্স্যাক্টলি, ঠিক। তো আপনার যদি 200 ml জল দেন আর 500 গ্রাম চিনি দেন তো থোড়ি জীবনে ওই অ্যানসারটা পেয়ে গেছি আর কি। ওই যেটা তুমি বললে লাস্টে যে ডিসলভের ব্যাপারটা, তাহলে ওই জায়গাটা ওইটুকু জায়গার মধ্যে জমিটা ফ্যাক্টর না, সারটাই ফ্যাক্টর আর কি। যখন আমি জলের সঙ্গে দিচ্ছি তখন আমি কি বললাম যে 1 বিঘা জমিতে 60 ml, 1 একর জমিতে 200 ml লাগবে, তো তাহলে জমি হিসেবে আমার একই মান। কিন্তু যখন আমি সারের সঙ্গে দিচ্ছি তখন সারের উপরে মাপতে হচ্ছে, কে কম দিল কে বেশি দিল তাতে আমার কনসার্ন নয়। আমার কনসার্ন হচ্ছে আমি সারের কাজের জন্য দিচ্ছি। তো সারটাকে ডিসলভ করার জন্য মাটির সঙ্গে ঘুলিয়ে মিশিয়ে গাছের শেকড় জমির মাটি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আমার যতটা অ্যাক্টিভিটি দরকার অতটাই আমাকে দিতে হবে। সেম উপায় হচ্ছে আপনার পেস্টিসাইড। কেউ 1 বিঘা জমিতে 2 ট্যাঙ্কি জল দেয়, কেউ 1 বিঘা জমিতে 10 ট্যাঙ্কি জল দেয়। তো তাহলে কি 2 ট্যাঙ্কিতে কত লাগছে আমার? 10 ml। আর 10 ট্যাঙ্কিতে কত লাগছে? 50 ml। তাহলে কি আমি 10 ml টাতে ঘুরিয়ে দেবো? তাহলে কি হবে না? এক্স্যাক্টলি তাই, ঠিক অ্যান্সার পেয়ে গেছি। তো সঞ্জয় স্যারের একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো, যেটা হচ্ছে মানে টোটাল বলতে লাস্টে যে কথাটা, আমরা গাছকে 1 পা এগোলে গাছ আমাদের 2 পা এগোবে, যেটা হচ্ছে আমাদের স্যার সমীর মোদী স্যারের যে বক্তব্য আর কি। আমি 1 পা এগোলে তোমরা 1 পা এগোলে আমি 2 পা এগোবো। তো গাছও সেই ব্যাপার, গাছও সেই জিনিসটাকে ফলো করছে আমাদের সমীর মোদী স্যারের। তো সেটাই আমরা এগিয়ে যাব। আমরা এগ্রিকালচারে আমরা যদি যাই 1 পা, তখন কিন্তু আমাদের উল্টে আমাদের প্রত্যেক মাসের 9 তারিখে সেখানেও দেখবে 2 পা করে ভরছে প্রত্যেক মাসের 9 তারিখ। 9 তারিখটাই মেন কনসার্ন। ঠিক আর আছে। স্যারের ফার্স্ট কথাটাও আমার খুব ভালো লেগেছে যে আমি হ্যান্ডসাম নই কিন্তু আমার একটা হ্যান্ড কিছু দিতে চায়, এই দারুণ কথা, দারুণ লেগেছে। বাহ বাহ। আচ্ছা, ওটা দেখতে পেয়েছেন? অবশ্যই, সবটাই তো দেখেছি। ওইটা আমি স্ক্রিনশট করে রেখেছি। আচ্ছা, ওটা স্ক্রিনশটও নিয়ে নিয়েছেন। সো লাস্ট হচ্ছে এই মাসের জন্য, যদি আপনারা আজকে সবে 8 তারিখ হয়েছে, এখনো 20 দিন মাসের বাকি আছে। সো এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করলে যা আমি ইনকাম দেখালাম সেটা তো আপনারা পাচ্ছেন। উপর থেকে একটা খুব সুন্দর অফার বি চলছে। অফার হচ্ছে আপনার যে কোনো বটল 5 লিটার ছাড়া, ঠিক আছে? যে কোনো বটল আপনি যদি 10 পিস নেন তাহলে আপনি 1 বটল ফ্রি পাচ্ছেন। 20 পিস যদি নেন তাহলে 2 বটল ফ্রি পাচ্ছেন। 39 বটল যদি নেন তাহলে 6 বটল ফ্রি পাচ্ছেন। আর 5 লিটার অ্যাক্টিভিটি 5 লিটারের ক্ষেত্রে আপনি যদি 6টা 5 লিটারের জার নেন তাহলে একটা 5 লিটারের জার আপনি ফ্রি পাচ্ছেন। তো খুব সুন্দর অফারও আছে মাসে। যদি আপনারা দেখেন অফারটাকেও কিছু ইউটিলাইজ করতে পারেন, তাহলে যে আমি ইনকামটা দেখিয়েছিলাম সেই ইনকামটা আরো বেশি বেড়ে যাবে। আর গৌতম বাবু, আপনার এই স্লাইডটা ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ, এটা আপনার ক্লিয়ার? হ্যাঁ ক্লিয়ার। কারো যদি স্ক্রিনশট না নিয়ে থাকে একটা নিয়ে নেন। সঞ্জয় দা, লাস্টে যে 5 নম্বর বোধহয় একটা দেখা যাচ্ছে না। কোথায়? অ্যাক্টিভ ম্যাক্স এর নিচে লাস্ট লাইনটা 4 এর পরে কি 5 নম্বর আছে? হ্যাঁ আছে। আছে।
এখানে বাকি লোক 5 নম্বর সিরিয়াল দেখতে পাচ্ছেন আমার কারসারটা আমি পাচ্ছি, না পাচ্ছেন? দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো পাচ্ছি। পাচ্ছেন না? না আছে তো, এসছে তো, দেখা যাচ্ছে। 5 নম্বর দেখতে পাচ্ছেন তো? এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক হ্যাঁ, আছে। দেখা যাচ্ছে। তাহলে আপনাদের নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল। নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল না, ওটা ছিল যেটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওটাকে ফুল স্ক্রিন করে নাও, যদি কেউ যদি মনে হয় অনেকে full দেখা screen যাচ্ছে, দেখা করে, যাচ্ছে। তাহলে কিন্তু দেখতে পাবে। হুম। ঠিক আছে, এবার দেখেন। আমরা দারুণ আমরা হ্যাঁ ট্রেনিং ঠিক আছে, হয়ে গেছে। ওকে, ইয়ে ক্লোজ করো। সঞ্জয় দা, তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব, ধন্যবাদ দেওয়ার সত্যি কোনো ভাষা নেই। জিবিডি হয়ে ধন্যবাদ দিও। স্টেজে গিয়ে বলবে যে সঞ্জয় ঘোষ দেখিয়েছিল, ঘষে দিয়েছে আমাকে, আর তার একটু ঘষে এগেইনস্টে দিয়েছে, পরশ পাতরে ঘষা খেয়ে গেছি, এবার আমরা সবাই জিবিটি হব। এবং Okay. আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, খুব শিগগিরই তুমি ডেফিনেটলি গুড নিউজ তো পাবেই। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমাদের সকলেরই টার্গেট, এবং খুব শিগগিরই হয়তো লাখ টাকাটা যখন ইনকাম করব না, তোমাকে আমি ফার্স্ট স্ক্রিনশটটা আমি তোমায় পাঠাবো। সঞ্জয় Thank দা, you so আমি much. পেরেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ঠিক আছে, 3:30 থেকে আবার আমার মিটিং আছে, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আপনারা কন্টিনিউ করুন। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ সঞ্জয় দা, থ্যাংক ইউ সো থ্যাংক মাচ। ইউ, দারুণ থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, আমরা থ্যাংক ইউ। আবার